अच्छा जी। सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी। सो we are through with our midterm exam. I hope midterm exam went well. Okay. कोई क्वेरी, कोई चीज़ ऐसी जो उसमें पूछने वाली हो या आसान था पेपर? और प्रोग्रामिंग वाले 10 नंबर का मैंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे, वो सारे के सारे वही थे जो कि बीच गाइड मैंने आपको दी हुई थी, उसके अंदर से ही कुछ कॉन्सेप्ट थे। तो उसमें अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो वो लाइक उसमें एक शायद सवाल था कि अगर आपका रिसीव जो है वो ज़ीरो रिटर्न कर दे तो उसका क्या मतलब है। तो अगेन उसका मतलब ये है कि जो आपका सर्वर है उसने अपना अपना कनेक्शन क्लोज कर दिया है, फॉर एग्जांपल। कुछ टाइप कास्टिंग का एक सवाल था। तो हाउएवर मेन फोकस शुड बी कि आपने अगर इम्प्लीमेंट किया है और उसको खुद हाथ से और क्लाइंट सर्वर को रन करके देख लिया तो वो ज़्यादा अहम है। नंबर ये कि चलें आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने उसको ज़्यादा अच्छी तरह से कवर किया होगा, तो दे मस्ट बी गेटिंग सम एडवांटेज आउट ऑफ इट। But however, that portion is now finished. Will not be asking any more question on the socket programming now. It is done. We'll be moving forward, और maybe I'll try के network simulator 2 थोड़ा सा जो है ना वो आगे हम कर सके किसी हद तक, ताकि एक सिमुलेशन लैंग्वेज आप स्टार्ट कर दें, ताकि कहीं किसी जगह पे आपको अगर थीसिस में रिक्वायरमेंट हो तो उसको आप यूटिलाइज कर सकें। बिकॉज थीसिस के लिए हिना इज है, शी मस्ट bear me out के there is a requirement of some simulation language always to verify the results, to to check some of the benchmarks, to check some of the performance parameters. Either we have to do something in hardware or we have to work something in the software side. So in softwares, the things are a little easier or maybe more accessible to us. And these softwares which we have in our hand are either MATLAB or Network Simulator, or maybe something like that. But most of the time, these two softwares, they are used for addressing various problems which are related to electrical engineering, computer networks, control side. So whatever thesis you will take, आपको इनमें से किसी न किसी एक लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। Okay, so today we are going to cover the IP addresses, logical addressing schemes. We'll start from the classful addressing, then we'll move on to the classless addressing, and we'll see how they are used to identify any system on the network, how the classes are made, how we can identify network addresses and the host addresses. What do we mean by the network ID? What do we mean by the host ID? And of course the concepts related to the subnets and supernets, how they are implemented. So as far as some introduction is concerned, IP address is or I would say IPv4 address is a 32-bit address. Lately people are shifting towards the IPv6, which is a 128-bit address. But because of number of reasons, still that transformation is sort of not completed, or it's sort of halted because of various improvements in this old scheme. There are some possibilities which have made it possible to still use this scheme effectively. We'll see this how this 32-bit address scheme works, and then we'll move on to 32 from 32 to 128-bit address schemes. So from our current knowledge, IP address is a 32-bit address, and it is just like the name. As we all have some unique name, we are identified by our name. In the similar way,
the devices on the network, they are identified by a unique IP address. Because 32 bits are used for the IP addresses, so accordingly we could have 2 power 32 possibilities, or approximately 4 billion IP addresses, which are possible by making use of this scheme. We can represent IP address with 3 common notation. Either it can be in the binary form, or dotted decimal form, or hexadecimal form. Like shown over here, this notation is the dotted decimal notation. In fact, there are 4 octets: octet 1, 2, 3, and 4, and each octet is composed of 8 bits. So total there are 32 bits. Either we can represent like dotted decimal number, or we can represent like the binary numbers. Like we can say 128 is nothing but 1 as the first bit and rest all zeros. Accordingly, all other numbers can be converted to binary numbers. Or we can also represent in form of the hexadecimal numbers. Each 4 bits can be converted from the binary notation to the hexadecimal number and can be written. So these possibilities are there in the conversions. We already must have done, all of us must have done it earlier, how we can convert from binary to decimal and from decimal to hexadecimal, and vice versa. And if you're following the book, then these conversions are again reviewed in one of the appendix, which you can go through in your own time. For example, if we have something like this, and if I ask you, okay, convert them to the binary notation, to the dotted decimal notation, so we can do that. Like this number is, I can write it down, okay, 8. अगर हमने इसको लिखना है, तो it is basically first number is 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. So accordingly bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर हमारे जहन में ये हो तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं. ये 1 है, it means 128 वाली bit 1 है, और उसके बाद ये वाली bit 1 है, तो this number is nothing but 129. सिमिलरली जब मैं अगले नंबर पे जाता हूँ तो उसमें मेरे पास ये बिट 1 है और ये 2 बिट 1 है, तो ये 8, 2, 10 और 1, 11, इट इज 11. अगले नंबर पे जाते हैं तो अगेन द सिमिलर नंबर इज देयर, सो इट वुड बी अगेन 11. अगले में जाते हैं तो 128 वाली बिट 1 है, 64 वाली 1 है, 34 वाली 1 है, तो हम इसको ऐड करना शुरू करें. 128 में 64 ऐड करेंगे तो 192 है, उसमें 32 ऐड करेंगे तो 224 हो जाएगा, 8 ऐड करेंगे तो 232 हो जाएगा, 234 or 235. So accordingly this number can be converted from the binary number to the dotted decimal number. तो इनमें से हर एक नंबर जो accordingly कन्वर्ट किया जा सकता है. इस तरीके से हमें अगर ये एक कन्वर्जन ध्यान में हो, but the way to do it is we take the first number, we multiply by the power of 2. So this is power of 2 is 0, plus we take the second number and we multiply with power of 1, and accordingly we keep on taking the left side numbers, move towards the left side and keep increasing the power of 2, and ultimately जब इसको आप ऐड करते हैं तो you get the number which is somewhere here. So इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, और यही सेम रूल फॉलो होता है टू कन्वर्ट फ्रॉम दी ऑक्टल नंबर्स, टू कन्वर्ट फ्रॉम दी हेक्साडेसिमल नंबर्स, क्योंकि पावर ऑफ बाइनरी नंबर्स जो है वो दे आर यूजिंग 2 बिट्स, सो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय पावर ऑफ 2s. अगर यहाँ ये हेक्साडेसिमल नंबर होते तो हम पावर ऑफ 16 से मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ पे ऑक्टल नंबर्स होते और पावर ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करते. अकॉर्डिंगली ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू दी डेसिमल नंबर. सो इस तरीके से आप कोई भी नंबर जो है वो ले सकते हैं और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं. Similarly, if we have the IP addresses in the dotted decimal numbers, so from here we can go and convert them into the binary numbers. For that we need to divide the numbers with the with 2. So accordingly 111 को अगर आप 2 से डिवाइड करना शुरू करें और इसके रिमाइंडर्स को लिखना शुरू कर दें तो आपके पास इसका बाइनरी नंबर जो है वो आ जाएगा, और वो आप लिख सकते हैं कि जी दिस इज दी बाइनरी नंबर. और अदरवाइज एज वेल अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो 111 का आप ऐसा कॉम्बिनेशन सोचें, लाइक यू नो कि जी मेरे पास 128 है, 64 है, 32 है, 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है. तो अगर मैंने 111 बनाना है तो सबसे पहले 101 128 वाला नंबर तो ऑन नहीं हो सकता, तो ये तो जीरो होगा नहीं केस. 64 वाली बिट जो है वो 1 होनी चाहिए. 32 ऐड करें तो ये 92 बन जाता है, इसको भी ऐड होना चाहिए. 16 को ऐड करें तो ये क्या बनता है फिर 108 बन जाएगा, 108 बन जाएगा, इसको भी 1 होना चाहिए.
अब आपने 108 बना लिया, 3 चाहिए आपको, इट मीन ये 2 बिट अगर आप 1 कर दें, इन 2 को 0 कर दें तो ये गलती कर दी है। 64 प्लस 32 इज व्हाट? 96। अच्छा मैं इसको 92 ले रहा था। तो 96 में आप 10 जमा करें तो 106 जमा 6 112 हो जाता है। इट मीन ये 0 होना चाहिए। 96 में 8 को ऐड करें तो कितना आएगा? 104। इट मीन ये वाली बिट जो है वो 1 होनी चाहिए। और उसके बाद आपने इसमें इस 4 वाली को ऐड करेंगे, इसको 0 कर देंगे और ये 1 कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली इस तरीके से भी आप इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं और नंबर को अपने कन्वर्जन में अचीव कर सकते हैं। और अदर वेज यू टेक द नंबर here and start dividing by 2. So accordingly नंबर को आप चेंज करेंगे, that is 2 5s are 10, 2 5s are 10, 1 is left. Accordingly इसको आप इधर से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए और अल्टीमेटली जो नंबर इस जगह पे बनने शुरू हो जाएंगे वो आपका कन्वर्जन हो जाएगी. So there are ways which you can use for this purpose. Okay, now there are some rules which one has to follow, as we have just seen that there are supposed to be 4 octets, and either it has to be represented in the binary numbers or dotted decimal numbers or uh, the 16 base systems hexadecimal numbers. So अगर उस रूल को हम फॉलो करें तो यहाँ पर we can simply say कि इसके अंदर हमारे पास एरर जो है वो ये है कि there is a leading zero which is not possible. अगेन इसके अंदर अगर जाते हैं तो इसमें 4 तक तो ठीक था, 5वां नहीं होना चाहिए था. इधर आते हैं तो 301 पे नहीं जाना चाहिए. मैक्सिमम नंबर जो आपके पास 8 टू पावर 8 का है वो दैट इज इक्वल टू 256, बट वी मूव बिकॉज ये बेस 256 सिस्टम है तो 255 के बाद हम 0 पे प्लग इन कर जाते हैं. तो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल इज 255. सिमिलरली आपके पास इधर ये चीज आप नहीं लिखेंगे. अगर आपने डेसिमल में लिख रहे हैं तो डेसिमल में ही होना चाहिए, कोई और नंबर बीच में नहीं होना चाहिए. तो ये एरर्स जो है वो किसी भी आईपी नंबर के अंदर से निकाले जा सकते हैं. In the similar way, we can move from the binary notation to hexadecimal. उसके लिए we need to make a pair of 4. So it would be pair of 4 here. So अगर ये 100 को आप देखें तो this is equivalent to 8 और this is equivalent to 1. So it would be 8 1 the first two numbers. और आगे जाते हैं तो this is 0 और इस 4 को देखते हैं तो ये 8 जमा 2 जमा 1 11. 11 is equivalent to B. So we can show it like B. Similarly अगले 4 नंबर फिर 0 है और फिर उसके बाद दोबारा B है. फिर ये 4 नंबर्स को देखते हैं तो 8 जमा 4 12 जमा 1 13. So this is equivalent to D, I think. Accordingly आगे इन 4 में आते हैं तो this is equivalent to E. So this is a base 16 system. अगर हम इसको कन्वर्ट करें और इस तरह ही हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम बाइनरी नंबर टू दी इवन नंबर. From binary numbers to we can convert to the hexa numbers by virtue of this. और इसको हम फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अंडर सबस्क्रिप्ट 16 के साथ या OX से मल्टीप्लाई शुरू में लिखते हैं अगर, तो वो भी इसका मतलब भी यही है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है. ओके जी, नहीं समझ आएंगे. एफ होता है, ठीक है, वो जो भी है हमें उससे गर्ज नहीं है कि क्या नंबर इधर मैंने गलत लिख दिया है. कोई बात नहीं, आप इसको ठीक कर लें, मुझे याद नहीं है. बट यू टेक 10 एज ए, फिर बी सी डी तक एफ तक चले जाते हैं. जो भी नंबर है वो आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. ओके, क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम पे आते हैं. तो इनफैक्ट वंस द आईपी एड्रेसेस वर स्टार्टेड ऑफ, सो एट द स्टार्ट once it was done somewhere in mid 1990s, the architecture was developed which was the classless, which is now currently used. But the earlier one before that was the classful addressing scheme, which is a special type of classless addressing. So we'll see कि classful किस तरह काम करता है, and then we'll move on to the classless. अगर classful हम अच्छा समझ लें तो classless is even easier. So अगर एड्रेस स्पेस के ऊपर देखें तो हमारे पास टोटल एड्रेसेस अगर 4 बिलियन है तो उसमें से तकरीबन 2 बिलियन क्लासफुल के अंदर क्लास ए से बिलोंग करते हैं और तकरीबन 1/4 जो है वो क्लास बी एड्रेसेस है, 1/8 जो है क्लास सी एड्रेसेस हैं और तकरीबन 1/16 क्लास डी और क्लास ई एड्रेसेस बनते हैं. ओवरऑल अगर हम इसकी एड्रेस स्पेस के ऊपर डिवीजन करें तो we'll see that we can
you can have this bifurcation from the binary numbers, like first byte के अंदर if your first bit is 0, yeah, वैसे आपको बुलाएंगे उसमें ये जो मीटिंग में बुलाएंगे उसमें आपसे पूछ लेंगे कि क्या चीज़ है उनके कुछ, क्योंकि उनके व्यू पॉइंट्स कुछ और हैं मोहसिन साहब के भी और उनके भी। हाँ, ठीक है, तो वो खैर जो भी है आपको बुला के आपसे आपके सामने आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सो अगर फर्स्ट बिट जो है वो 0 हो तो ये क्लास ए एड्रेस है, अगर फर्स्ट 0 नहीं है और 1 है तो नेक्स्ट 0 है तो क्लास बी है, अगर नेक्स्ट भी 0 नहीं है, थर्ड 0 है तो ये क्लास सी है। इस तरह ही क्लास डी और क्लास ई का डिसीजन किया जा सकता है। और बाइनरी नंबर्स को देखते हुए अगर पहली बिट 0 हो जाए तो बाकी जो 7 बिट्स हैं उनमें कोई भी नंबर आ सकता है, 0 से लेके 1 तक। सारे 0 भी हो सकते हैं और सारे 1 भी हो सकते हैं। अगर सारे 1 हो जाएं, ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो दिस नंबर वुड बिकम इक्वल्स टू 127, बिकॉज 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 को ऐड करें तो इट इज 127। और अगर ये वाली बिट भी, पहली वाली बिट भी 1 होती तो 127 प्लस 128 मिलके 255 हो जाता। तो इसका मतलब ये कि क्लास ए अगर मैं डेसिमल नंबर्स में लिखना चाहूँ तो 0 से लेके 127 तक क्लास ए के आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और फिर क्लास बी उसके आगे मूव करती है क्योंकि उसमें पहली बिट 1 हो जाती है और बाकी बिट्स चेंज करती हैं। तो अकॉर्डिंगली वहां पे 128 से ऑनवर्ड्स कोई नंबर होगा और उसको निकाला जा सकता है। जैसा पहले क्लास में 0 से 127 है, दूसरे में now there is a simple algorithm which can be written to convert from or to identify the class of a particular IP address. You need to check the first bit, then the second bit, then the third bit, then the fourth bit. Accordingly classes can be identified. So अगर मैं चला जाऊँ आगे from the decimal numbers, so 0 से 127 में क्लास A फॉल करती है, 128 से 191 तक क्लास B फॉल करती है, 192 से 223 क्लास C है, 224 से 239 तक क्लास D है, और फिर अकॉर्डिंगली 240 से 255 तक क्लास E है। और ये बेस कर रहा है ऑन दी बाइनरी नंबर जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे। और लाइक वी कैन सिंपली डू समथिंग ओवर है कि यहाँ पे आपके पास पहली 4 बिट्स अगर 1 हो गई हैं तो अगले नंबरों पे सारे 0 हो सकते हैं। अगर सारे 0 हो जाएंगे तो ये पहला एड्रेस होगा इस क्लास का, जिसको कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं कि ये 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 को ऐड करने से बनेगा, और ये नंबर क्या बनेगा 192 प्लस 224 प्लस 30 240। सो 240 से शुरू करेंगे और अगर ये सारे वंस हो जाएं तो वो 255 हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से अगर हम जाके देखें तो यहाँ पे इसकी आपको कैटेगरी नजर आ रही है कि क्लास सी में जो है वो 240 से 255 तक के नंबर्स हैं, और इस तरह से बाकी नंबर्स भी लिए गए। हाँ, अभी आगे आते हैं ना, वहाँ पे आते हैं, उस पर देखते हैं कि कहाँ पे इनफैक्ट क्लासफुल अब यूज ही नहीं होती, क्लास लेस यूज होती है, लेकिन क्लासफुल की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हम देखते हैं कि क्या क्या थी, उस पर आते हैं। ओके, सो इन दिस वे अगर मैं इनके नंबर ऑफ एड्रेसेस टोटल निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि पहली बिट जो है क्लास ए में यूज नहीं हो रही है, बाकी 31 बिट्स यूज हो रही हैं, तो दिस इज जनरली 2 बिलियन विच इज अ 50% रेशो। और क्लास बी में चूंकि पहली 2 बिट्स यूज नहीं हो रही और अगली 30 यूज हो रही हैं, तो यू कुड से कि 25%। अकॉर्डिंगली ratios can be computed for all various classes which are there in this type of addressing scheme. Okay, so if I ask you कि how can we prove that we have 2 billion addresses in class A, तो कैसे प्रूव करेंगे आप? 2 पावर 31 करेंगे ना, कि आपके पास पहली बिट तो 0 होगी ना, वो फिक्स कर दिया आपने, बाकी 31 बिट्स में आप वो वेरी कर सकते हैं क्लास ए के लिए। सो देयर आर 2 पावर 31 एड्रेसेस, जिसको अगर आप रिजॉल्व करो इट गिव्स यू अराउंड 2 बिलियन number, this number which is written here. So accordingly we can go and compute that number
और हम उसको कह सकते हैं कि जितने जो है वो एड्रेसेस हैं। सिमिलरली अगर ये एक बाइनरी नंबर में सारे आईपी एड्रेसेस लिखे हो तो बाय लुकिंग एट द बाइनरी नंबर्स we could comment on the type of that address, like the first address is a class A, the number B is C address, शहबाज फोर्थ वन B है, फोर्थ वन की बात कर रहा हूँ, D है या E है, चारों वंस हो तो क्लास E बन जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन गो एंड कंप्यूट बाय लुकिंग एट दी फर्स्ट फ्यू बिट्स, हम इनके क्लासेस के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। और अगेन हमने इस तरह देखा कि जी डेसिमल के अंदर भी हम बता सकते हैं कि 1 to 7 तक है क्लास ए है, 1 to 8 से 191 तक क्लास बी है, 192 से 2 to 3 तक क्लास सी है, 2 to 4 से 239 तक जो है क्लास डी है, और अकॉर्डिंगली फिर आगे वाले नंबर। और अब यहाँ पे अगर उनको बताया जाए तो बता सकते हैं कि 2 to 7 जो है वो लाई करता है इस क्लास के अंदर, बी, क्लास डी में लाई करता है, बिकॉज इट्स बिटवीन 2 to 4 to 239। फिर 193 को देखते हैं तो ये क्लास सी है, 14 क्लास ए है, 252 क्लास ई है, और 134 क्लास बी है। तो नंबर्स अगर आपके जहन में हो नहीं भी हो तो आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि इसकी कौन सी क्लास है। ओके, सो इन द सिमिलर वे अगर हम कहें कि तो हमने भी थोड़ी देर पहले देखा that 2 power 31 is 2 billion, but we know that the first address in this scheme is 0.0.0.0. This is the first address in class A. Last address क्या होगा class A का? इरफान, लास्ट एड्रेस क्लास ए का क्या होगा? इरफान, नंबर डॉटेड डेसिमल में क्या नंबर होगा? डॉटेड डेसिमल में जोर से बोलो। 127.0, ये लास्ट एड्रेस होगा शहबाज। 127 तो ठीक है, क्योंकि क्लास ए के जो फर्स्ट ऑक्टेट के नंबर है वो 0 से 1 to 7 तक होते हैं, तो 1 to 7 तो ठीक है। आगे क्या नंबर होंगे? मतलब उधर तो नंबर आपके पास पूरे हो सकते हैं ना, लास्ट एड्रेस तो 255.255.255 तक हो सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट आईपी ऑफ क्लास ए। और अगर इन आईपी की बेस के ऊपर ये चीज निकालने की कोशिश की जाए कि इनके दरमियान में कितने आईपी एड्रेसेस हैं, तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस, so that can be computed by converting them into base 256 system, क्योंकि base 256 system है तो आप इसको convert कर सकते हैं। 255 would be multiplied by 256 power 0 plus next is 255 multiplied by 256 power 1, next is again 255 multiplied by 256 power 2 and plus 127 multiplied by 256 power 3। इसको जब आप convert करते हैं तो number which you get is 2147483647। क्यों? क्योंकि एक ये आपके पास इस नंबर का एड्रेस है और एक एड्रेस ये वाला भी है ना, ये भी एक एड्रेस है, तो आप इसमें इसको ऐड करेंगे तो टोटल एड्रेसेस आपके पास प्लस दी लास्ट वन। ये तो इस नंबर को कन्वर्ट किया ना आपने, इस नंबर का ये नंबर आएगा, देखिए ये पहला एड्रेस है, तो +1 देयर आर टोटल ऑफ these many addresses which are there. Okay, so in this way as shown over here as well, so last address is 2147483647 and you add the first address which is the 0 to get the range, that is the first address, so your total numbers are 2147483648. Okay, now one of other thing which is important to make this thing simpler is that in the class A, the first byte is used as the network ID and the rest of the 3 bytes are used as the host IDs. Whereas in the class B, first 2 bytes are used as network ID and other 2 bytes are used as the host ID. In class C, we use the first 3. In class D and class E,
there is no such bifurcation, but class D is they are used for the multicast addresses, and class E is a was a reserved. It was kept as reserved for any future use for some of the availability or requirement basis के ऊपर इसको reserve रखा गया था. Although they are now no use, but this was how it was divided. सो पहली तीन क्लासेस जो है वो यूज़ ज़्यादा होती हैं. नज़म की बात ठीक है, लेकिन क्लास डी और ई भी जो है वो किसी मकसद के लिए रखी गई हैं. क्लास डी जो है वो मोस्टली आपके जो ऐसे रिक्वायरमेंट के तहत जहाँ पे आपको मल्टीपल यूज़र्स को एक ही एड्रेस देना हो, तो क्लास डी के एड्रेस दिए जाते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए, स्पेशली जो राउटर्स हैं, ब्रिजेस हैं, या जो आपकी इस तरह के एल्गोरिथम्स हैं, लाइक जिनको हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. जब आप करते हैं मल्टीपल यूजर्स एक ही डिवाइस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, या मल्टीपल यूजर्स को एक इंफॉर्मेशन जा रही होती है, तो वो क्लास डी का आईपी एड्रेस सारों को दिया जाता है अकॉर्डिंगली, ताकि वो सब लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके. अगेन वही सवाल जो आगे भी आएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. अभी यहाँ पे करते हैं. Okay, so classes and blocks. In fact, class full addressing scheme is divided into classes and blocks. Um, the issue, in fact, this is the issue with class full addressing, that each class is divided into a fixed number of blocks having a fixed size of IP addresses. Like class A में 128 blocks हैं, and the as we just saw that the class A is from 0 to 127, right? And the first byte is the network ID. So my first block would be 0 dot 0 dot 0 dot 0. Now in fact ये पहले ब्लॉक में जो फर्स्ट मेरे पास आईडी फिक्स हो जाती है, और आगे वाली आईडीज जो है वो चेंज होंगी. जब वो चेंज होंगी तो वो 0 से लेके they can go till 255 255 255. So this would be my block number 1 for a class A address. First byte is the network ID, which will remain fixed. It means that for all the IDs between these two numbers, 0 would remain fixed. So इसका मतलब ये होगा कि next number यहाँ पे होगा 0.0.0.1, अगला होगा 0.0.2, और आगे ultimately will move till this number, which is the last IP address in this block, 0.255.255.255. This is one block in class A, or block number 1. सेकेंड ब्लॉक पे जाना हो आपने शहबाज, तो वो क्या होगा, इस ब्लॉक की ब्लॉक आईडी क्या होगी? ब्लॉक आईडी, ये ब्लॉक आईडी है. इट रिमेन फिक्स फॉर द इंटायर ब्लॉक. नहीं, 0 तो यूज हो गई ना यहाँ पे, नेक्स्ट को 1 होना चाहिए. 1 डॉट और 1 ये फिक्स रहेगा थ्रू आउट द ब्लॉक, और बाकी जो आईडीज है, जो बाकी होस्ट आईडी है, वो वेरी करेगी 0.0.0 से लेके इट कुड बी 1.255.255.255. इट मींस के ये दिस वुड बी द ब्लॉक 2. सो एक ब्लॉक के अंदर जो आईपी एड्रेसेस हैं यहाँ पर टोटल, दे वुड बी 2 पावर 24, बिकॉज ये आठों की आठों बिट जो है वो चेंज हो सकती है, ये भी चेंज हो सकती है, ये भी चेंज हो सकती है. तो आईपी एड्रेसेस could take on this much value, 2 power 24, which is a huge number of IP addresses in one block, right? In the similar way, if we continue, the last block in class A क्या होगा नजम? से लेके 1 to 7 would be the block ID, dot 0 to कहाँ तक होगा ये ब्लॉक? बिल्कुल. अगले वाले ऑक्टेट ऐसे वेरी करेंगे कि ये बेसिकली 0 जो है यहाँ पे 8 जीरोज हैं, इधर भी 8 जीरोज हैं, यहाँ भी 8 जीरोज हैं. उनके अंदर आप 0 या 1 कुछ भी रख सकते हैं. लाइक ये एक ब्लॉक है जिसकी ब्लॉक आईडी 1 to 7 है, बस का आईपी एड्रेसेस जो है, दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस 127.0.0.0. द सेकंड आईपी एड्रेस इन द रो विल बी, अगर हम डेसिमल नंबर पे चलें तो 127.0.0.1, ये आपको देना चाहिए ना आईपी एड्रेस अगला. उसके अगले पे जाएंगे तो 127.0.0.2. जब ये राइट मोस्ट ऑक्टेट खत्म हो जाएगा, यानी यू विल रीच टू 127.0.0.255,
Then we will move on to the next optet, which would be 127. It would again be fixed 0.1.0. आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस, आपकी चॉइस, वो सारे इसी ब्लॉक का हिस्सा है। आप बीइंग दी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हो इस ब्लॉक के अंदर, लेकिन पॉइंट ये है कि ये आठों की आठों बिट चेंज हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब आपकी चॉइस है कि आप सीक्वेंस में राइट मोड से चलें या आप थर्ड मोड से चलें, दैट इज योर चॉइस, बट आईपी इज अवेलेबल टू यू, ऑल दी आईपीज आर अवेलेबल टू यू। आपकी बात ये है कि आप इससे भी ले सकते हैं कि 127.1.0.0 ये भी एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द आईपी एड्रेस, यू कुड कॉल इट दी सेकंड आईपी। आप कहते हैं जी कि मैं ये पहला आईपी है, इसके बाद मैं बजाय राइट मोस्ट यानी इसको यूज करने की जगह मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ, तो यूज कर लें, कोई बात नहीं। यू कुड मेक इट लाइक दिस, ये वन वाला फिर ये टू कर दें आप, लेकिन जनरल ट्रेंड ये है कि ये लास्ट जो आपके पास है ये आपके पास दी राइट वे, कि ये एक ब्लॉक पूरा खत्म हो जाए तो आप अगले पे जाएं, फिर अगले पे जाएं, फिर अगले पे जाएं। क्यों था 127 वाला ब्लॉक हम यूज ही नहीं करते क्लास में, ये जाया हो जाता है। मैं उसी पे आगे आता हूँ कि इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन क्या है। लाइक वी हैव सीन जस्ट कि जी फर्स्ट ब्लॉक जो है उसकी ब्लॉक आईडी 0 है, ऐसे ही कलर नजर आ रहा है ना, 0.0.0 से लेके 0.255.255.5, इसकी नेटवर्क आईडी 0 है या ब्लॉक आईडी 0 है, ये एक ब्लॉक है। सेकंड ब्लॉक जो है वो 1 वाली नेट आईडी के साथ है, थर्ड वाला 2 के साथ होगा, फिर 3 के साथ, अल्टीमेटली विल गो टिल 1 to 7। So first bit will remain same, but other bits might change in the range for each block. In these, there are how many blocks? 0 से लेके 1 to 7 तक there are 1 to 8 blocks. Out of these 1 to 8 blocks, 2 blocks are fixed. They are not used. They are reserved. The block number 0 and the block number 1 to 7. ब्लॉक 0 जो है वो यूज करते हैं, हम आगे देखेंगे। स्पेशल एड्रेस एक है जिसमें हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, लाइक आपका सिस्टम एक नेटवर्क के ऊपर है, आप चाहते हैं कि जी इसका आईपी एड्रेस आपको पता चले, तो आपका जो सिस्टम जब जागता है आप उसको ऑन करते हैं तो वो लोकल बूटस्ट्रैप सर्वर को या डीएचसीपी सर्वर को ऑल जीरोस लगा के अपना सोर्स एड्रेस फेंकता है कि जी मुझे नहीं पता अपना आईपी एड्रेस, मुझे अपना आईपी एड्रेस बताएं आप। तो जो आपका डीएचसीपी सर्वर है वो रिप्लाई बैक करेगा विद द आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम, जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने वहाँ पे रखे होंगे, पूल ऑफ एड्रेसेस रखे हुए होंगे कि जी ये आपने सिस्टम्स को देने, प्राइवेट होगा या पब्लिक भी हो सकता है, राइट। सो वो एड्रेस स्कीम यूज नहीं होती, 0 वाली यूज नहीं करते हम फॉर गिविंग टू ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली 1 to 7 वाला ब्लॉक भी फ्री ब्लॉक है, जो भी लोकल होस्ट के ऊपर आप चीजें चेक करते हैं, इट्स अ लूप बैक एड्रेस स्कीम 1 to 7 वाला, और ये हर कोई यूज कर सकता है टू चेक दी फंक्शनैलिटी ऑफ इट्स ओन लोकल सर्वर, या भी अगेन जी उसकी अपनी आईपी लेयर को चेक करने के लिए 1 to 7 का ब्लॉक यूज होता है। लाइक आपने सर्वर प्रोग्रामिंग के अंदर 1 to 7 का कोई भी नंबर यूज करते, वो आपको ही वापस जवाब देता, आपकी स्क्रीन पे ही आता जवाब कि जी ये मैं रिटर्न बैक करके आ गया हूँ, या इधर ही लोकल आपने कोई जो क्लाइंट खोला हुआ था वो उसको रिप्लाई बैक करता, ठीक है। तो ये 2 ब्लॉक्स यूज नहीं होते। सिमिलरली देयर आर फ्यू अदर ब्लॉक्स। नेट आईडी 10 वाला जो ब्लॉक है, दिस इज अ प्राइवेट ब्लॉक। आपने देखा होगा कि आपके लोकल लैब के अंदर या कहीं पे आप कहीं अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हर आईपी एड्रेस जो है वो 10 डॉट करके होता है, 10.1.1.1 10 डॉट समथिंग। तो वो 10 वाला जो ब्लॉक है, यानी 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, ये कंप्लीट ब्लॉक 2 पावर 24 एड्रेसेस जो हैं, ये प्राइवेट एड्रेसिंग स्कीम है, और ये भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जाता। और इसका मकसद ये होता है कि आपको बाज़ औक़ात बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो आप नहीं चाहते कि जी हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, आपको लोकल एक इंटर नेटवर्क के ऊपर काम करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे आईपी एड्रेसेस को आप टीसीपी आईपी सूट के ऊपर यूज करके कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली वंस यू आर गोइंग टू कनेक्ट ऑन टू द ग्लोबल इंटरनेट, देन यू नीड द पब्लिक आईपीज, जो कि 10 वाले ब्लॉक के फिर नहीं होंगे। सिमिलरली जो बाकी क्लासेस हैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ब्लॉक्स हैं, लाइक क्लास बी के अंदर 16 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट है, और आगे मूव करें तो क्लास सी के अंदर 255 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट हैं और उनको हम नहीं देते। तो आपने समटाइम्स देखा होगा 10.0 का ब्लॉक, कभी आपने देखा होगा 172.16 का ब्लॉक, कभी आपने देखा होगा 192.68.0 का ब्लॉक, ये सारे के सारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, ठीक है।
सो अगर इन तीनों ब्लॉक्स को निकाल दिया क्लास ए के अंदर से तो देयर आर टोटल 1 to 5 ब्लॉक्स व्हिच कैन बी असाइंड टू ऑर्गेनाइजेशंस अगर ये स्कीम पे हम चलते और हर ब्लॉक के अंदर तकरीबन 16777 एड्रेसेस होते हैं. दिस नंबर इज बेसिकली 2 power 24 व्हिच इज राउंड अबाउट दिस मच वैल्यू. और ये जो इतना इतना ह्यूज पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस है, इट्स अ वेरी बिग नंबर. जो इवन द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है उसके पास भी इतने आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अगर ये ब्लॉक किसी को देंगे भी आप तो it would get wasted. Lot of IP addresses won't be used by that organization. So that is why this is more than the requirement of any organization. So this is one of the reason के ये स्कीम जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए बिकॉज इसमें एड्रेसेस जो है वो ज़ाया हो रहे हैं और वो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि आईपी एड्रेसेस में आईपी एड्रेसेस कम है तो आपने उनको इफेक्टिवली यूज़ करना है. इसलिए however this problem is there for the class A. So millions, if you go by this notation of classful addressing scheme, millions of addresses will be wasted if we go on this. Okay, so if we see a particular network which has been assigned with a block from class A address like 73.0.0.0. So this is indication of a network address. The first address is the network address. The last address is again a special address which is not given to any system. So say net ID 0 एक basically एक block है और एक net ID 73 एक block है जिसमें ये सारे addresses possible हैं. The first address is the network address. The last address is again a special address which is used for the broadcast purposes. बाकी IPs जो है वो आप systems के अंदर दे सकते हैं, routers को, printers को, systems को, वो सारे के सारे use किए जा सकते हैं. This is how this one block will work. The internet would know the organization with its network address which would be there in the tables of the routers कि अगर कोई एक सिस्टम इस पर्टिकुलर नेटवर्क में रिजाइड कर रहा है तो उसके लिए बाहर के जितने सिस्टम्स हैं उन्होंने इस एड्रेस को फॉलो करना है कि जी 73.0.0.0 पे मैंने अपने पैकेट को पहुंचाना है. आगे जो वहाँ का लोकल राउटर होगा जो इसके एंट्रेंस के ऊपर लगा होगा इट वुड बी हैविंग द एंट्रीज कि मेरे पास स्पेसिफिक 73.0.0.2 जो है वो किस हार्डवेयर एड्रेस के ऊपर है या क्या फिजिकल एड्रेस सिस्टम का है ताकि पैकेट वहां तक पहुंच जाए. राइट, सो दिस इज हाउ क्लास ए ब्लॉक वर्क्स. In the similar way, if you move on to the class B, so class B हमने कहा था जी कि we have the class B की जो आइडेंटिफिकेशन है वो 128 से लेके 191 तक इसके फर्स्ट ऑक्टेट में नंबर होते हैं. और हमने साथ ये भी कहा कि क्लास B के अंदर फर्स्ट 2 बाइट्स आर दी नेटवर्क IDs and the other 2 आर दी होस्ट IDs. So अगर मैं 128.0 को पहला ब्लॉक डिक्लेयर करूं तो ये 128.0 से लेके जैसा यहाँ मेंशन है it will go till 128.0.255.255. First 2 bytes would remain fixed because they are the block IDs. Rest 2 bytes would vary from 0.0 to 1.1, 0.1, 0.2 ultimately till 255.255. So इसके अंदर जो host IDs होंगी वो भी 2 power 16 होंगी. होस्ट आईडीज 2 power 16. और अगर मैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालना चाहूँ क्योंकि इसका ये तो फर्स्ट ब्लॉक हो गया, लास्ट ब्लॉक जो है 191 को देखते हुए दिस वुड बी द लास्ट ब्लॉक आईडी 191.255. ये होस्ट आईडीज होंगी. राइट, सो अगर फर्स्ट ब्लॉक 128.0 है तो सेकंड ब्लॉक 128.1 होगा, थर्ड ब्लॉक जो है 128.2 होगा. अल्टीमेटली आप मूव करेंगे और जब ये 255 तक पहुंच जाएगा सेकंड नंबर तो 129 पे आ जाएंगे और फिर चलते रहेंगे. अल्टीमेटली 191.0 पे जाएंगे, उसको भी आगे लेके चलेंगे तो 191.1 आएगा और फिर अल्टीमेटली यू विल रीच टू 191.255. दिस इज योर लास्ट ब्लॉक आईडी. Right, so first 2 bytes are same, the other 2 bytes may take any value. So if we follow and if I tell you, okay, tell me how to compute the blocks. If I've written here कि 16,384 blocks हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर. इससे पहले हमने कहा था कि टोटल ब्लॉक्स हमारे पास क्लास ए में है वो 128 है, यहाँ पे जो है वो 16,000 है. तो कैसे हैं ये 16,384? कैन यू कंप्यूट दिस? 2 power 16 तो इसके बराबर नहीं होती.
करके देखें 2 पावर 16 किसके बराबर है, निकालें। मेरे ख्याल में 2 पावर 16 बराबर होता है 65536 के, 65,536। तो इतने होस्ट होते हैं हर ब्लॉक के अंदर। जी करो ना, क्या करो, कितने हैं वो। जो सेकंड ऑक्टेट है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 255, इट मींस कि वहां पे 256 का टोटल गैप है। और जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो चेंज हो रहा है 128 से 191। अगर आप ये डिफरेंस निकालो तो दिस इज इक्वल टू 64। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 64 दफा 256 आ रहा है, so this gives you an answer of 16384, these many blocks. So there are 16,384 blocks in class B, and each block will be having these many hosts, 65,536. Or still this IP address is a huge number. 65,000 is again more than the requirement of any organization. So if any organization buying a class B block, it will be wasting lot of IP addresses again. So इसका मतलब ये है कि इसको भी practically use नहीं किया जा सकता like this. If you have a class B block, तो ये 128.0 is one block and you keep moving, like एक organization है वो कहती है मुझे block दे दें आप, और आपने उसको 180.8 दे दिया, तो उसके IP address होंगे 180.8.0.0 से लेके 180.8.255.255 तक, जिसमें से पहला एड्रेस है दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, इट इज नॉट गिवन टू एनी system, and the last address is the broadcast address, again not assigned to any system. Rest of the IPs can be given, which are around 65,534 IP addresses जो कि आप दे सकते हैं. It's a huge block, again not into use as such. नहीं ये 3 ब्लॉक कर दिए आप यहाँ, तो ये नहीं ये देखो, ये जो चीज़ है ये बता रही है कि आप चलते रहें, तो देर आर टोटल 16,384 ब्लॉक्स, ये 3 नहीं है, ये ब्लॉक्स इतने हैं, सही है। तो पहला ब्लॉक 128.0 है, दूसरा 128.1 होगा, फिर 128.2 होगा, अल्टीमेटली 129 वाला ब्लॉक शुरू होगा, फिर आप चलते चलते 191 तक जाएंगे। तो ये दिस इज द लास्ट ब्लॉक 191.255. First 2 bytes are network ID, rest of the 2 bytes are the host IDs. देखो इसमें मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, 128.0 से लेके जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है वो क्या है, 128.0 है, ये फर्स्ट ब्लॉक है ना, और ये वेरी करता है फ्रॉम 0.0 से लेके 255.255 तक, ठीक है, ये पहला ब्लॉक हो गया। तो एक चीज तो यहाँ से स्टैब्लिश ये की जा सकती है कि इस ब्लॉक के अंदर जो होस्ट आईडीज होंगी वो 2 पावर 16 होंगी, ये तो समझ आ गई है। ओके, नाउ आई गो ऑन टू दी के हमारे पास ये नंबर जो वेरी हो रहा है वो ये पहला ब्लॉक है। अब जो सेकंड ब्लॉक आएगा इसके बाद से मैं नीचे लिखता हूँ वो होगा 128.1, फिर आएगा जी 128.2, अल्टीमेटली आप जाएंगे 128.255 तक, और इसके बाद आप चले जाएंगे 129.0 के ऊपर, ऐसे ही है। फिर 129 के लिए भी 0 से लेके 255 तक नंबर वेरी करेंगे। अच्छा, इसका मतलब यही हुआ कि 128, 129, 130, 131 हर एक के लिए जो वेरिएशन आ रही है सेकंड ब्लॉक में वो आ रही है 256 नंबर्स की, ठीक है, 128 फिर 129 फिर 130 हर एक के लिए नंबर आ रहा है। इट मींस कि अगर मैं ये सारे नंबर निकाल लूं कि कितने नंबर ये थे उसको 256 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गेट द टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस जो इसमें आई है, और वो आती है अगर आप 191 को सब्ट्रैक्ट करो 128 से तो दिस आंसर गिव्स यू 63 है, लेकिन बेसिकली ये 64 नंबर है, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 64। ठीक है, ये नंबर 63 है, लेकिन रेंज आप लिखते ना जी ये ट्री नंबर 1 है, फिर ये ट्री नंबर 2 है, ये ट्री नंबर 3 है। अब मैं कहूँ जी कितने ट्रीज हैं, आप कहें 3 - 1 तो आ रहा है 2, ट्री तो है 3, तो आप क्या करते हैं हमेशा एक ऐड करते हैं रेंज में, तो इसलिए इधर भी 191 से 128 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर 63 आएगा, लेकिन टोटल रेंज जो है वो +1 करके मिलेगी 64, इसलिए 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। So in this way we can get the number of block IDs as well as the number of host IDs in any class which is their class B.
So many class B addresses, they are wasted, as even mid-size organizations does not have this much strength of hosts. So it's a huge number, 65,536. बहुत ज़्यादा IP addresses हैं, ठीक है? So it is not used. In the similar way, we can move towards the class C. So जिस तरह भी हमने कहा जी कि जो क्लास B है वो 128.0 फर्स्ट ब्लॉक है और जो लास्ट ब्लॉक है वो 191.255 है, ऐसे ही है। जो नेक्स्ट क्लास C है वो शुरू होती है 192 से लेके 223 तक, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। और हमने कहा कि जी 3 ऑक्टेट्स जो है वो यूज होते हैं टू रिप्रेजेंट दी ब्लॉक आईडी। तो अगर मैं 192 से शुरू करूं तो 192.0.0 दिस शुड बी माय फर्स्ट ब्लॉक आईडी फॉर अ क्लास सी ब्लॉक। तो जिसमें आईपी एड्रेसेस होंगे वो होंगे 192.0.0 से लेके .255 तक, क्योंकि हमें पता है कि जी ब्लॉक आईडी तो पूरे ब्लॉक के लिए फिक्स होगी, तो वो यही रहेगी 192.0.0, ये तो फिक्स रहेगी ना। ये आईपीज होंगे जो चेंज हो रहे होंगे। तो इस एक ब्लॉक के अंदर जो आईपी एड्रेसेस हैं वो कितने हो गए फिर 256 हो गए, ये आईपी एड्रेसेस है। एक ब्लॉक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लिया, उसको ये आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है, क्योंकि पहला जो 3 ऑक्टेट्स है ये फिक्स है। जो अगला ब्लॉक होगा इसमें वो होगा 192.0.1, ये फिक्स रहेगा 192.0.1, और जो इसके अंदर आ जाएंगे आपके पास आईपी एड्रेसेस वो 0 से लेके 255 तक हो। तो अगेन इस ब्लॉक में भी जो टोटल आईपीज हैं वो 256 हो गए। ये सेकंड ब्लॉक है। ये वेरिएशन इसमें ये वेरी हो सकता है, तो होस्ट के आईडीज ये सारी अवेलेबल है ना, 0 भी अवेलेबल है, 1 भी है, लेके 255 तक, तो टोटल होस्ट आईडीज हो गई 256, ठीक है। In the similar way, if we keep moving, the who will tell me कि what would be the last block in class C? जी शहबाज 223.255.255, ये हो जाएगी ब्लॉक आईडी, और यहाँ पे जो नंबर वेरी करेंगे होस्ट आईपीज के वो 0 से लेके 255 तक वेरी करेंगे। तो अगेन इस ब्लॉक के अंदर भी टोटल एड्रेसेस 256 हो जाएंगे। So if I ask you right now, okay, now tell me how many blocks would be there in class C? तो वो कितने हो गए? टू 223 में से आप 192 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या नंबर आता है? 31, यानी बेसिकली 32 प्लस 1 रेंज है 32। 32 मल्टीप्लाइड बाय बाकी दोनों नंबर वेरी कर रहे हैं 256, so you'll multiply it with 256 multiplied by 256, so this number will give you the number of blocks in class C, क्योंकि ये भी 0 से 125 तक जा रहा है, ये भी 0 से 255 तक जा रहा है। तो हर नंबर यहाँ पे जो हर नंबर है उसके लिए ये पूरा दोनों नंबर वेरी करते हैं, फिर अगले के लिए 2 नंबर वेरी करते हैं, तो दिस इज अ नंबर, इनफैक्ट ये एक नंबर बड़ा होना चाहिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास सी के अंदर इफ यू सी देयर आर 2096896 organizations which are possible to be assigned with class C block, and each block contains 256 host. So अगर ये ब्लॉक्स मुख्तलिफ शो हुए, इनमें से एक ब्लॉक इधर शो किया हुआ है 200.11.8, ये ब्लॉक आईडी है, और जो फर्स्ट आईपी है ये नेटवर्क एड्रेस है, लास्ट एड्रेस जो इसका है वो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, बीच वाले जितने आईपीज हैं .1 से लेके देखें हर एक के अंदर जो ब्लॉक आईडी है वो फिक्स है, it is not changing, it is not changing, only the change is in the host id, host ids are changing. So this complete block would be with the same network id, but the block id will change. So this is a one block which is pertain to class C. So there are 2097152 blocks in this particular सिस्टम। इसमें से कुछ ब्लॉक्स सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं प्राइवेट वाले, तो वो सब्ट्रैक्ट करके ये यूजफुल ब्लॉक्स है जो यहाँ लिखे हुए हैं, राइट, क्योंकि क्लास सी के अंदर हमारे पास 192.168.0 से लेके 192.168.255 तक के जो ब्लॉक्स हैं ये प्राइवेट ब्लॉक्स हैं, जो कि 256 ब्लॉक्स हैं। तो ये 256 ब्लॉक्स आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर बन जाएगा आपके पास 2096896, क्योंकि वो यूज नहीं होते।
Okay, so this is how blocks in class C. अब यहाँ पे जो addresses हैं they are quite less. 256 IPs are lesser, so it means we can comment that the number of addresses in class C is smaller than the needs of most organizations which require more number of IPs. So there is a dilemma. The first two classes got too many addresses. The one which is in use, class C, has got two less addresses. So what to do? It means we should go for something else. On the other hand, class D addresses, they are again used for the multicasting, और एक ही ब्लॉक है जिसको हम क्लास D का एड्रेस कहते हैं, और वो बेसिकली is starting from 224 till 240 239 in fact. तो पूरा पूरा ब्लॉक जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है. Each address is used to define one group of hosts on the internet, or when assigned to a group, every host member of the group will have the multicast address in addition to its normal address. Class E addresses जो है वो reserved है. Most of the time they were not used. So accordingly they were sort of wasted because इनको अपने future purpose के लिए रखा हुआ था. So in classful addressing, the network address, the first address in the block is the one that is assigned to the organization. The range of addresses can automatically be inferred from the network address that we know. So like if we are told, okay, there is a network address of 17.0.0.0. So if I ask you what will be the class of this address block, तो class क्या होगी इसकी? Class A है. और ये ब्लॉक जो है वो कहां से कहां तक है? 17.0.0.0 से लेके इसमें बाकी IPs कौन कौन से होंगे? क्योंकि पहला जो आपके पास है वो फिक्स होता है, बाकी सारे वेरी करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द रेंज ऑफ एड्रेसेस व्हिच वुड बी अवेलेबल टू अस इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस. ठीक है. So classes between these 0 to 127, based on that we can comment के कौन सी class है और फिर उसके बाद हम उसकी total addresses बता सकते हैं. Similarly, if the network address is 132.21.0.0, so this is a class B address. Class B में जो आपके पास block होता है वो उसमें first 2 bytes fix होती हैं. तो इसका मतलब ये है कि 132.21.0.0 से लेके 132.21.255.255 तक इसका पूरी रेंज होगी जो कि निकाली जा सकती है. 220.34.76.0 ये क्लास सी का ब्लॉक है और ये नेटवर्क एड्रेस है. तो बाकी जो आईपीज इसमें होंगे वो .1 से लेके .255 तक रेंज करेंगे. लास्ट वाला भी यूज नहीं होगा, वो ब्रॉडकास्ट आईपी के तौर पे यूज होगा. Okay, so there is a concept of mask which is used because the devices which are there in the network, they are not intelligent. तो उनमें intelligence डालने के लिए to get the network address at the routers to which they have to forward the packets, the concept of mask is used, and this mask in fact is sort of AND operation is done to compute the network address, to compute the beginning address in the block, और फिर accordingly routers जो है वो उस पैकेट को route करते हैं correct destination की तरफ. Like it's written at the 130, एक एड्रेस लिखा हुआ है 134.45.78.2 इस क्लास B एड्रेस. सो अगर मैं ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे मैंने पैकेट को राउट करना है तो मुझे इसका नेटवर्क एड्रेस चाहिए होगा राउटर को. जब ये राउटर के पास आएगा तो उसके लिए राउटर इसको एंड ऑपरेशन करेगा बाय लुकिंग एट दी क्लास. दिस क्लास इज क्लास B. सो इट विल टेल मी ओके जी क्लास B है तो इसका जो मास्क है वो पहली 16 बिट्स के ऊपर होना चाहिए. पहली 16 बिट्स के साथ जब वो एंड ऑपरेशन करेगा तो उसको यहाँ पर जो ऑपरेशन जो नंबर मिलेगा वो 134.45.0.0 मिलेगा, जो कि उसको बताएगा कि जी यही बेसिकली इसका नेटवर्क एड्रेस है और इसके ऊपर आपने इसको फॉरवर्ड करना है, ऐसे राउटर पे फेंकना है जो कि इस एड्रेस के ऊपर रिजाइड कर रहा हो. और अकॉर्डिंगली उसे उस राउटर को फाइनल राउटर को पता है कि जी ये वाला एड्रेस जो है वो किधर रिजाइड कर रहा है. So accordingly this can be done if we are following the operation of masking. So mask is used. तो मास्क ऑपरेशन ये है कि आपका एड्रेस जब भी आता है उसको आप एंड ऑपरेशन करते हैं विद द मास्क, तो इट गिव्स यू द बिगिनिंग एड्रेस टू व्हिच द पैकेट हैज टू बी फॉरवर्डेड. तो मास्क में क्या ऑपरेशन है कि 1 का नंबर है तो 1 से आंसर वही रहता है जो आप करते हैं, 0 करते हैं तो 0 हो जाता है. ठीक है. सो अगर आप डिफॉल्ट मास्क देखें तो क्लास A का डिफॉल्ट मास्क फर्स्ट 8 बिट्स आर 1, क्लास B के लिए फर्स्ट 16 बिट्स आर 1, क्लास C के लिए फर्स्ट 24 बिट्स आर 1, and dotted decimal number में it is 255.0.0.0 and class B के लिए class C के लिए.
ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मास्क इज कि जब इसके साथ आप एंड ऑपरेशन करें तो आपको नेटवर्क आईडी मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा, हमें पता है कि क्लास ए में पहली जो ऑक्टेट होती है वो फिक्स होती है, बाकी ऑक्टेट जो है वो वेरी कर रही होती है। क्लास बी के लिए फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स फिक्स होती है, क्लास सी के लिए फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स फिक्स होती है। So network address is the beginning address of each block. It can be found by applying the default mask to any of the addresses in the block, including itself. It retains the net ID of the block and sets the host ID to 0. So say if this is the address 201.180.56.5, तो मिसबा, आपका नाम मिसबा है, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का नेटवर्क एड्रेस सबसे पहले तो बताएं कि ये कौन सी क्लास है। क्लास सी है, बिकॉज 192 से 224 के दरमियान में है। तो इसका मास्क क्या होगा? क्लास सी के लिए मास्क क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट 3 फिक्स होते हैं। अगर हम ब्लॉक आईडी की बात करें, ब्लॉक आईडी मैंने निकाली, तो आप है ना इंटेलिजेंट, आपने मुझे बता दिया कि जी फर्स्ट थी, लेकिन अब मैंने तो मास्किंग ऑपरेशन करना है, इफ आई एम अ राउटर। सो मास्किंग ऑपरेशन के लिए मेरे पास मास्क होना चाहिए। वो मास्क क्या होगा अगर क्लास सी एड्रेस पता चल जाए? It should be first 3 octets as 255.255.255.0। अब इनका आपस में अगर मैं एंड ऑपरेशन करूं, ठीक है, ये सारे वंस हैं तो मुझे 201 मिल जाएगा, ये सारे वंस हैं तो 180 मिल जाएगा, ये सारे वंस हैं तो 56 मल्टीप्लाई के मिल जाएगा, इधर 5 के साथ ये ऑल जीरोस हैं तो ये 0 हो जाएगा। सो दिस वुड बी माय बिगिनिंग एड्रेस, या ये कहेंगे दिस वुड बी द नेटवर्क एड्रेस टू विच या ऑन विच दिस आईपी एड्रेस रिजाइड्स, right? So in this way we can work forward and move forward. So this is the beginning address of network address. ठीक है? Okay, given the address, another address is there. So Hamad is here. Okay, let me ask Hamad. 23.56.7.91. Which block, yeah, which class it belongs? Okay, so if I ask you कि what will be beginning address, तो क्या होगा beginning address? ये एक host ID है, ठीक है? किसी एक आईपी, किसी एक सिस्टम को दी हुई है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये होस्ट आईडी जो है वो किस नेटवर्क पे रह रही है, तो मुझे इसका बिगिनिंग एड्रेस चाहिए, बिकॉज बिगिनिंग एड्रेस इज द नेटवर्क आईडी, या नेटवर्क एड्रेस होता है वो, ये है, ठीक है। लेकिन अब उसको मैंने मास्किंग ऑपरेशन से निकालना है, तो मुझे इसे एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा 255.0.0.0 से, द आंसर वुड बी 23.0.0.0। सो दिस इज माय बिगिनिंग एड्रेस व्हिच इज अगेन द network ID to which this host ID belongs. So it can be computed. Similarly, now coming on to this, Salim, class mask .0.0, उसके एंड ऑपरेशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 132.66.0.0। सो इनफैक्ट इसकी जो ब्लॉक आईडी है 132.6 है, और होस्ट आईडी, या आप कहेंगे जी जो इसका इनफैक्ट जो नेटवर्क एड्रेस है वो 132.6.0.0 है। ब्लॉक आईडी is the first 2 octet. Block ID also called net ID, whereas the network address is all the 4 IDs, all the 4 octets with whatever numbers are there, but they are only generally the first 2 are active and the 2 are the zeros. Okay, so important thing is that the router or that intermediary device should not apply the default mask of one class to another address belonging to some other class, otherwise the answer would be wrong. So based on this masking, we represent any IP address into classless interdomain routing notation, CIDR, classless interdomain routing, in which we show the mask along with the IP address. So if we have an address 18.46.74.10, so we know this is a class A address, so I can just write it down with a /8. 8 indicates the first 8 bits would be fixed. Similarly, 141.24.74.0 is 16 because it's a class B address, और जब class C पे जाते हैं तो हम पहली 24 bits को fix करते हैं, तो /24 करके लिख सकते हैं. This is another way of writing the
IP addresses, and it is compatible with the classless addressing scheme, which we'll see shortly कि वो किस तरह से implement होती है वहाँ पे. Mask could vary from 1 bit to all 32 bits. यहाँ पे we have mask of 8 bits, 16 bits, and 24 bits. Later on we'll see that mask can be extended to any number of bits because of more effectiveness. So, in fact, there are issues with the classes. जैसे हमने कहा कि जी number of devices on the internet are much lesser than the 2 power 32 address space. We are running out of class A and B addresses. Yeah, at the time once it was decided 90s के अंदर there was a problem कि class A और B addresses चूँकि कम थे, हमें मालूम है कि जी सिर्फ 128 ब्लॉक हैं class A के, और जो class B के blocks हैं they are how many? It is 32 multiplied by 256, again a shorter number. और क्लास सी जो है उसमें जो आपके आईपी एड्रेसेस हैं वो बड़े शॉर्ट हैं, तो अकॉर्डिंगली हर एक के अंदर प्रॉब्लम है. सो इस स्कीम को काम करने के लिए कुछ और अल्टरनेट अरेंजमेंट पे जाना चाहिए. और जो इश्यूज हैं इनमें वो क्या क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. लाइक मल्टी होम डिवाइसेस का एक कॉन्सेप्ट है, लोकेशन नॉट नेम्ड, स्पेशल एड्रेसेस, प्राइवेट एड्रेसेस, एंड देन देयर आर सम अदर इश्यूज व्हिच आर देयर. लाइक आपकी ये मल्टी होम डिवाइसेस का मतलब ये है कि आपका बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा इंटरफेसेस होते हैं, तो आपको ज़्यादा आईपी एड्रेसेस देने पड़ते हैं. लाइक राउटर्स के अगर 3 इंटरफेसेस हैं तो 3 आईपी एड्रेसेस को आपको देने पड़ेंगे. सो वन राउटर वन डिवाइस बट 3 आईपी एड्रेसेस. एक सिस्टम है वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसका एक आईपी एड्रेस, दूसरे से कनेक्टेड है तो दूसरा आईपी एड्रेस. सो देयर आर मल्टीपल आईपी एड्रेसेस व्हिच मे बी पॉसिबल विद अ सिंगल डिवाइस. सो दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेसेस. So this adds to the problem of already less number of IP addresses. Similarly, जो IP addresses है, they define the location of the node and they do not give this identity. Like if you have a system, if you come bring it here in the university, it will be given an IP address based on this location. If you move from here, go to Pindi and connect again, then again you will be given an IP address based on Pindi. You move to America, the IP addresses will be based on America. So it is not the identity of the device, it is the identity of location. So it's always good if you could have this device with a fixed IP address, like इसका जो इसका physical address है वो fix है, but IP address keeps on changing. So again, because of this, एक ही device जो है वो 3 मुख्तलिफ जगहों पे, अगर आपने आपके घर 3 जगहों पे हैं, तीनों जगहों पे आपको अलग अलग नेटवर्क्स जब आप लेते हैं तो आपको अलग अलग IP addresses साइन होंगे, अकॉर्डिंगली वो आप यूज करेंगे तो अगेन ऐड करेगा. IP address ऑलरेडी कम है, आपने 3 ले लिए 3 मुख्तलिफ जगहों के लिए, तो अगेन इट विल ऐड टू द प्रॉब्लम व्हिच इज ऑलरेडी देयर. Then there are some other special addresses. हाँ जी, ठंडी ठंडी सांसें कौन ले रहा है? थोड़ी देर बाद ब्रेक करते हैं, 1:30 पे, या एक क्विज ले लें छोटा सा आपसे जो अब तक पढ़ा है. जो अभी हमने पढ़ा है, अगर मैं आपसे उसी में एक छोटा सा क्विज ले लूँ. अच्छा चले कंप्यूट करें कि ब्लॉक्स जो हैं अपनी कॉपी पे ही, कि क्लास बी के अंदर पहला ब्लॉक कौन सा है और आखिरी ब्लॉक कौन सा है, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो कितने होते हैं क्लास बी में.
कर ली बस सब। क्यों? टू फाइव सिक्स से करेंगे, 255। 0 से 255 तक लिखा होगा ना, लेकिन टोटल तो 256 हो जाता है। रेंज इज 256। तो हमारे पास क्लास बी जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 128.0 से लेके 191.255 तक। बाकी इधर जो भी चीज़ आ रही है उसमें हमें गर्ज नहीं है। ये हमारे पास ब्लॉक आईडीज हैं, ये फर्स्ट ब्लॉक आईडी है, लास्ट ब्लॉक आईडी है। तो अकॉर्डिंगली इनके दरमियान जो नंबर्स हैं, ये जो दो है ये एक्सट्रीम्स हैं, तो ये टोटल अगर आप करें रेंज तो 256 है, और ये दो एक्सट्रीम्स हैं, रेंज निकालेंगे तो ये 64 है। तो दिस गिव्स यू एन आंसर ऑफ 1638। So these are the number of blocks which are possible in class B. 1 to 8 बिल्कुल यूज करते हैं, आप यूज नहीं करते? मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा 1 to 8 यूज करते हैं, 1 to 7 यूज नहीं करते। मे भी कहीं इसकी कैटेगराइज इस तरह से होती है कि कुछ स्पेशल ब्लॉक्स होते हैं कि जिसको किसी स्पेशल पर्पज के लिए आइडेंटिफाई किया होता है, बट जनरली स्पीकिंग दे आर अलाउड। टू फाइव फाइव तक क्यों जाते हैं? मतलब आप कहते हैं 256 पे क्यों नहीं जाते? आप बताओ क्या वजह हो सकती है? 8 लोकेशन है ना बाइनरी नंबर्स की,
तो ये 8 नंबर्स हैं, अब सारे के सारे 1 हो जाएं अगर, तो ये किसके बराबर है? मैक्सिमम यही हो सकता है ना, सारे 1 हो जाएंगे, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो सारे 1 हो जाए तो दिस नंबर इज 255, क्योंकि 8 बिट्स है। अगर एक बिट और होती यहाँ पे तो ये नंबर ऊपर भी जा सकता था। इसके बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि ये पावर ऑफ 2 है, 2 पावर 3 में लाया करता है, 8 बिट्स हैं। हम जनरली जो बिट्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो अलाइन करते हैं इन बिट्स के ऊपर हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये कि जब आगे जाके हम देखेंगे क्लास लेस के अंदर, जब आपने एक ब्लॉक असाइन करना होता है तो अगेन उधर भी ये 8 बिट्स का फायदा होता है आपके पास। अगर इससे ज़्यादा बिट्स होती हैं तो ये आप एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते। तो रेगुलरिटी इज इम्पोर्टेंट इन सर्टन थिंग्स, जहाँ पे ये चीज़ आपके हेल्प आउट होगी अगर हम इस तरह से रखें। अगर नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। तो मतलब वो वही क्या है, वो ये पूछ रहे हैं कि जी 255 ही क्यों रखा है, इसको आप यूँ करते, मतलब ही वांट्स टू से कि जी आप 8 की जगह 10 बिट्स कर लेते, फिर 6 बिट कर लेते, फिर 4 बिट कर लेते, फिर 4 कर लेते, फिर 4 कर लेते, फिर 4 कर लेते। वो पॉसिबल तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन हो सकती है, लेकिन दिस गिव्स यू द मोस्ट आइडियल वर्किंग इन नंबर ऑफ अदर थिंग्स। और फिर डिजाइनर की मर्जी है, अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो उस टाइम पे तो हो सकता है आप कुछ और डिसाइड करते हैं। दिस इज हाउ पीपल हैव कम अप, दे once they devise something they follow the popular notations of that time, accordingly वो चलता है। जिस तरह अभी आपने देखा होगा जी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आप कहते हैं, हम हमें पता है कि जी ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव बिकॉज नेगेटिव चार्ज, बट वी टेक इट पॉजिटिव कि ये उल्टा ट्रैवल करता है हमेशा, क्योंकि कन्वेंशनली इसको इस तरह लिया जाता है कि जी करंट इज पॉजिटिव, whereas current is not never positive, current is negative. It moves from negative pole to positive pole, but in all the mathematical calculations, in all the laws, we take it like कि जी ये पॉजिटिव है, क्योंकि जिसने शुरू में इसको डिवाइस किया उसने इसको पॉजिटिव लिया, तो आज तक पॉजिटिव है। कन्वेंशन थी, उसने कहा जी कि करंट पॉजिटिव है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो भी उसके जहन में था। कूलम वॉज देयर, कूलम था, कूलम वॉज अ साइंटिस्ट, ओहम वॉज अ साइंटिस्ट, फैराडे वॉज अ साइंटिस्ट, राइट। फिर आपकी फिजिक्स में आपका न्यूटोनियन फिजिक्स आ गई, और उसके बाद फिर मैक्सवेल की इक्वेशंस थी, और फादर आइंस्टाइन इन्वॉल्व हो गया बीच में। तो फिर वेरिएशंस आती रही, लेकिन ये अल्टीमेटली स्टिल इसको वही लिया जाता है कि ये पॉजिटिव करंट। ओके, तो आगे चलते हैं। नाउ देयर आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल जो कि ऐड ऑन करती हैं। अच्छा 26 हो गए हैं, तो पहले फिर आप ब्रेक कर लें, इसके बाद फिर हम इसको नमाज के बाद इसको लेके चलते हैं, ठीक। चलिए बिस्मिल्लाह करें, करते हैं वो क्लास के बाद। अच्छा जी, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि जो करंट या जो क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम है उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी कम है, 4 बिलियन टोटल हैं, डिवाइसेस 4 बिलियन से ज़्यादा होती चली जा रही हैं। सो अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं, तो कोई और सोल्यूशन होना चाहिए। उनमें कुछ और फर्दर प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्पेशल एड्रेसेस की हैं, लाइक नेटवर्क एड्रेसेस में कुछ आईपी एड्रेसेस ख़राब होते हैं, कुछ ब्रॉडकास्टिंग के सिलसिले में आईपी एड्रेसेस जो हैं वो ख़राब होते हैं, और कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लाइक एक प्रॉब्लम है नेटवर्क एड्रेस की। हमने कहा था कि जो हर ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट एड्रेस होता है that is the network address, like 123.0.0.0 is the network address of class A. So class A के अंदर बाकी सारी डिवाइसेस जो है उनके पास आईपी एड्रेसेस होंगे, लेकिन पहला एड्रेस जो है वो नहीं मिलेगा और वो नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। इट मींस इट इज वेस्टेड। सेकंड, इफ क्लास बी की बात करें तो अगेन दी नेटवर्क एड्रेस इज द फर्स्ट टू
bytes are fixed as the block ID 141.14 or .0.0. It indicates that this is the network ID or network address. Similarly, क्लास C का भी एक नेटवर्क एड्रेस होगा कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर. जो बाकी डिवाइसेस हैं वो ये पहला एड्रेस नहीं ले सकेंगी. पहला एड्रेस जो है दैट वुड बी द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क. So this is the network address which is not assigned to any device. Then there is a problem of direct broadcast addresses. Direct broadcast address is the address used by the routers to send a packet to all the systems on a particular network. So it is done by using the last address of that network. Like for this type of network ID, which is 221.45.71.0, that is the network, which is a class C network. So इसका last IP जो है वो all ones है 255. So this IP address is used by our router to send a packet to all the systems on a particular network. So this type of address is not assigned to any system. So it is again a wasted address. We call this the direct broadcast address. सवाल क्या तुम्हारा नहीं समझ आई. इसलिए नहीं होगा ना कि इस एड्रेस को अगर आप किसी एक सिस्टम को दे देंगे तो वो सिस्टम तक फिर पैकेट जाना चाहिए, जबकि एम ये है कि जब ये एड्रेस देखे कोई भी एक सिस्टम नेटवर्क के ऊपर तो उसे पता चल जाए कि ये ब्रॉडकास्ट हुआ है और राउटर ने भेजा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन सिग्नल है जो विच इज मेंट नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर एवरीबडी. दिस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस. जरूरी है ना. ये इस राउटर ने, ये एक राउटर है, इसके बहुत सारे इंटरफेसेस हो सकते हैं. हो सकता है यहाँ पर ये एक और नेटवर्क से कनेक्टेड हो जो कि क्लास ए नेटवर्क है 17.0.0.0. ठीक है. अब अगर इसने एक ब्रॉडकास्ट पैकेट फेंकना है इस नेटवर्क के लिए तो ये आईडी यूज करेगा 17.255.255.255. इस सूरत में जितने भी आईपी एड्रेसेस यहाँ पे कनेक्टेड है इस नेटवर्क पे उन तक वो पैकेट जो है वो ट्रेवल करेगा. इसका एक और इंटरफेस है, ये कनेक्टेड है क्लास बी के साथ 132.1.0.0 फॉर एग्जाम्पल. यहाँ पे अगर कोई पैकेट भेजना है जो हर सिस्टम के ऊपर जाए उसके लिए इट विल यूज द आईपी एड्रेस ऑफ 132.1.255.255. So this is called as the direct broadcast IP address, which is derived from the network. ये लाजमी है कि अगर ये पैकेट जाना है 221.45.71.0 वाले नेटवर्क पे तो ये तीनों एड्रेस यहाँ पे या तीनों फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो उस नेटवर्क के होंगे. हाँ लेकिन इस नेटवर्क पे जाएगा ना, ये नेटवर्क तो फिक्स होगा ना, इस नेटवर्क पे जाएगा, किसी और नेटवर्क पे नहीं जाएगा. तो राउटर ने जब किसी नेटवर्क पे कोई पैकेट फेंकना होता है तो वो लास्ट आईपी एड्रेस जो सिस्टम का होता है वो यूज करता है. यहाँ पे चूंकि लास्ट 255 है इसलिए ऑल वंस है. आगे जाके जब हम क्लास लेस में देखते हैं तो उधर जरूरी नहीं है कि ऑल वंस वाला पैकेट ही ब्रॉडकास्ट आईपी हो, जो भी लास्ट आईपी होता है वो यूज किया जाता है विद इन अ नेटवर्क. हाँ कभी भी हम ब्रॉडकास्ट करना चाहते ही नहीं है, ना ब्रॉडकास्ट सिस्टम करने देते हैं आपके. एक नेटवर्क पे ही होता है जब भी होता है. डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आईपी जो है वो राउटर्स यूज करते हैं और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट आईपी जो है वो आपके सिस्टम्स यूज करते हैं. आपने एक पैकेट भेजना है यहाँ पे सबको भेजना है तो आप टोटल वंस लगा के भेज दोगे तो वो आपका जो लोकल राउटर है वो ब्लॉक कर देगा. जब भी लोकल ऑल वंस के साथ एक पैकेट आएगा वो राउटर पे ब्लॉक हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा. ठीक है. सो ऑल वंस जो होते हैं जिसमें से 255.255.255 ऑल वंस वाला जो आईपी एड्रेस पैकेट जब ट्रैवल करता है तो वो एक लोकल नेटवर्क पे ट्रैवल करता है और उसका जनरली मकसद ये होता है कि जो एक लोकल नेटवर्क के ऊपर डीएचसीपी सर्वर के तौर पे सिस्टम काम कर रहा है वो उसको इंटरसेप्ट करे और
जिस जगह से जनरेट हुआ है उसको उसका आईपी एड्रेस रिटर्न कर दे कि तुम्हारा ये आईपी एड्रेस है। वो डीएचसीपी में दो चीज आएंगी ना डीएचसीपी के पास, एक आएगा होस्ट एड्रेस यानी सोर्स एड्रेस, वो ऑल जीरोस लगे होंगे। ऑल जीरोस का मतलब ये है कि इसका आईपी एड्रेस नहीं है इसके पास, और ऑल वंस लगे होंगे डेस्टिनेशन के ऊपर, तो वो हर एक के पास जाएगा, डीएचसीपी सर्वर के पास भी जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा डबल वेरिफिकेशन के जी ऑल वंस ये एक ब्रॉडकास्ट आईपी है, एक सिस्टम में ब्रॉडकास्ट किया और इसका अपना एड्रेस जीरो है, इट मीन्स कि ये मुझसे मांगना चाह रहा है कि जी मुझे अपना आईपी एड्रेस दें, तो वो नया पैकेट जो भेजेगा उसमें वो उसका आईपी एड्रेस पैच करके उसको भेज देगा और वो उसको सेव कर लेगा। ठीक है, वो कम्युनिकेशन अलग पोर्ट नंबर्स पे होती है, वो अलग से हम देखेंगे। 68 67 पोर्ट नंबर पे जब भी कम्युनिकेशन होती है वो आईपी एड्रेसेस की मालूम करने के सिलसिले में होती है विद द डीएचसीपी सर्वर। तो zeros as a source, all ones as the destination. ये बेसिकली स्विच की बात हो रही है ना, राउटर इज अ कॉमन नेम फॉर एवरीथिंग। हमने कहा था ना कि जो राउटर हो गया, ब्रिज हो गया, आपका हब हो गया, ये सारे एक ही एक कॉमन नेम है एक डिवाइस के, जो कि एक नेटवर्क को एक नेटवर्क से कनेक्ट कर रही होती है, एक सेगमेंट को एक सेगमेंट से कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो हमने एक जनरल नाम यूज किया, यू कैन कॉल इट अ स्विच, कि स्विच है जो कि यूज कर रहा है। स्विच इज अ नेम, स्विच बेसिकली फंक्शनैलिटी है। स्विचिंग मीन्स कि एक पोर्ट के ऊपर एक पैकेट आ रहा, आपने उसको स्विच करके एक और पैकेट पे फेंक और पोर्ट पे फेंक दिया, तो वो स्विच जो एक राउटर भी हो सकता है, वो स्विच एक ब्रिज भी हो सकता है, वो स्विच एक हब भी हो सकता है। स्विच इज द फंक्शनैलिटी विच इज कंप्लीट और कैरिड आउट बाय एवरी डिवाइस जो कि सेगमेंट्स को सेगमेंट से कनेक्ट कर रही होती है। ठीक है, so this is the direct broadcast example. Another one could be the limited broadcast IP, which is used by any system to know about its own IP address. So it would be placing all the ones in the destination and all the zeros as its own address, which will be blocked by the local switch, local router. Don't allow it to go move beyond that network. एंड एज वी ऑलरेडी सॉ कि ये जो 255 255 255 वाला एड्रेस है, ये आता है फ्रॉम 240 टू 255 की कैटेगरी में, तो ये क्लास ई एड्रेस है, राइट। सो क्लास ई एड्रेस की एक स्पेशल एड्रेस है, इसलिए इसको भी किसी ब्लॉक को हम या किसी सिस्टम या किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देते, ये स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेस है जो कि इस काम के लिए ही रखे गए हैं, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। So a limited broadcast address is used by a host, as written here, to send a packet to every host on the same network. However, the packet is blocked by routers to confine the packets to the local network only, because broadcasting is considered as spamming. It is not allowed beyond a network, or there are ways and means to avoid such traffic on the network, because they may block or involve into congestion and is not needed as such. Then another one is the system like all zeros. So a host that does not know its IP address, it uses the IP address as 0000 as the source address and 255 255 255 as the destination address to send a message to the bootstrap server or the DHCP server, which will return this system back with its own IP कि तुम्हारा ये IP है, right? So accordingly, this is how this address is again. So ये जो zero वाला block है, it's a zero block. ये again it's wasted, it's not used. All the zeros or any other address will belong to this block is not given to any organization. Specific host of this network. So say if a particular message has to be sent to a system or a network, so it can be just sent to that particular system which is specified by the host ID, because rest of the things are common. तो ये हर एक होस्ट की आईडी है उसके ऊपर है, तो वन कैन ओनली सेंड और यूज दिस एड्रेस एज द आईपी एड्रेस व्हिच वुड बी डिलीवर्ड टू दिस सिस्टम व्हिच इज विद द होस्ट आईडी ऑफ 64, right? So it basically belongs to the class A and special block of 0. So that is why this block is not assigned, because ये local networks के ऊपर इसको use किया जाता है extensively by the devices or the router. It's used by a router or a host to send a message to a specific host on the same network. अगेन 127 वाला ब्लॉक जो है 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255. This block carries 2 power 24 addresses, or this whole block is used to check the software, to test a software on a local machine, or perform various experimentations which you can do on your own system. जिस तरह आपने
करंटली अभी खुद भी किया क्लाइंट सर्वर मॉडलिंग के अंदर आपने ये एड्रेसेस एक्सटेंसिवली यूज़ किए और इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी नंबर लगा के इसमें फेंक सकते हैं, वो लोकल नेटवर्क तक ही महदूद रहेगा, लोकल सिस्टम तक महदूद रहेगा और आपकी नेटवर्क लेयर से रिटर्न करके आपके एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को ऑन अ पर्टिकुलर पोर्ट एड्रेस रिप्लाई बैक कर सकते हैं। So this is used for, and it's called the loopback address. Any packet which is destined for a loopback address will not reach the network. It will bounce back. It will return back on the same machine. But it can check number of functionalities which are required for the experimentation purposes. So again, this block is not used by the organizations. नाउ देयर प्राइवेट ब्लॉक्स, हमने जिस तरह कहा था कि जी क्लास ए के अंदर एक प्राइवेट ब्लॉक है जिसकी ब्लॉक आईडी 10 है, यानी इसमें जो एड्रेसेस होंगे वो 10.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक होंगे। ये टोटल 2 पावर 24 एड्रेसेस हैं। वेरी कॉमनली यूज प्राइवेट ब्लॉक जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है हमारी लैब्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और आप देखते हैं कि इनमें से कोई आई पी एड्रेस यूज हुआ होता है और इसके लिए आपको लोकल रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री सर्विसेज में रजिस्टर कराने की या इस आईपी एड्रेस को इशू कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ जस्ट फ्रीली अवेलेबल विच एनीबडी कैन यूज ऑन इट्स लोकल नेटवर्क। क्लास बी के अंदर जो है वो 16 ब्लॉक्स हैं इस कैटेगरी के। 172.16 एक ब्लॉक है, यानी इसमें एड्रेसेस होंगे 172.16.0.0 से लेके 172.16.255.255, ये एक ब्लॉक है। और लास्ट ब्लॉक जो है वो 172.31.0.0 से लेके 172.31.255.255, ये लास्ट ब्लॉक है। तो टोटल ब्लॉक्स ये 16 बन जाते हैं और हर ब्लॉक में 2 पावर 16 एड्रेसेस हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं। क्लास सी के अंदर देयर आर 256 एड्रेसेस व्हिच आर 192.168.0, दिस इज द ब्लॉक आईडी नंबर 1। और इसके अंदर एड्रेसेस होंगे 192.168.0 से लेके 0.0 से लेके 192.168.0.255 तक होंगे, यानी एक ब्लॉक में 256 आईडीज होंगी और यहाँ से लेके यू कैन गो टिल 192.168.255, तो टोटल 256 ब्लॉक्स बन जाते हैं और हर ब्लॉक के अंदर इतनी आईडी है। So they can be used at any place where you need to form a network which is working or making use of the services of TCP/IP protocol suite, and you do not need to get it registered on the internet with the internet authorities. और इसका एम ये होता है कि ये आप इंटरनेट के ऊपर या ग्लोबल इंटरनेट के ऊपर एक्सेस नहीं कर रहे, बल्कि एक लोकल नेटवर्क आपने बनाया हुआ है और उसमें आप कुछ फाइल शेयरिंग या कुछ इस तरह की अरेंजमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है आईपी एड्रेसेस की। So in this way, private addresses are extensively used. So multicasting delivery जो है वो हमने ऑलरेडी हमने कहा जी क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं जो कि यूज होते हैं, जिसमें मल्टीपल सोर्सेज जो है या मल्टीपल सिस्टम जो है वो एक ही आईपी एड्रेस को असाइन हो जाता है। लाइक एग्जांपल इज समथिंग लाइक दिस कि आपके पास ये 224 वाली जो रेंज है क्लास डी एड्रेसेस की है और ये बेसिकली पूरी रेंज जो है वो यूज हो रही है। इफ यू सी ऑल ऑफ दीज जनरली देयर फॉर द राउटर्स, फॉर सम ऑफ द ब्रिजेस एटसेट्रा, जो कि एक खास पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो एक ही एड्रेस उन सब डिवाइसेस को मिल जाता है और जब पैकेट डिलीवर होते हैं तो वो एक साथ ही सबको डिलीवर किए जाते हैं। सिमिलरली देयर आर सम ऑफ दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टैंडर्ड्स। जब आप उस स्टैंडर्ड के ऊपर कनेक्ट होते हैं तो आपको एक ऐसा एड्रेस मिलता है जो कि आपके अलावा जो भी और कनेक्ट होगा उस सिस्टम के ऊपर उनको भी वही आईपी एड्रेस मिलेगा। सो ये अगेन दे आर ऑल फ्रॉम द रेंज ऑफ क्लास डी एड्रेस। स्टिल दे आर नोटेशनली या कन्वेंशनली यही ब्लॉक्स यूज होते हैं, ऑल्दो क्लासलेस में आ गए हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इसी ब्लॉक में जनरली लाए करते हैं जिसमें शुरू में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ओके, यहाँ पे एक चीज जो थोड़ा सा मैंने अभी पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स भी अपने डिसाइड करने हैं, तो यू कुड गो इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर में से किसी एक को भी आप लेके एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये किस तरह काम करता है। कुड बी वन गुड प्रोजेक्ट फॉर फन कि यू कैन टेक ओके फॉर एग्जांपल कि ये जो IETF2 डॉट डैश वीडियो का जो स्टैंडर्ड है ये किस तरह से काम करता है, फॉर एग्जांपल किन किन लोकल स्टैंडर्ड्स में ये इम्प्लीमेंटेड है, और या ये ऑडियो एक सिस्टम है ये किस तरह से इम्प्लीमेंटेड है। तो इनकी वर्किंग भी लाइक ऑडियो न्यूज़ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टैंडर्ड है, तो हाउ इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ग्लोबली, कौन कौन से इसके क्लाइंटेलीज हैं जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं।
सो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है अगर कोई चाहे तो। बाकी आप में से हर कोई ने कुछ ना कुछ करना है तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम एक सिंपल इंटरनेट के ऊपर गौर करें तो एक इंटरनेट जो होता है बेसिकली उसमें देयर आर नंबर ऑफ नेटवर्क्स विद देयर नेटवर्क आईडीज जो कि कनेक्टेड होते हैं। लाइक हियर इट इज शोन देयर इज अ बस नेटवर्क। इस इनफैक्ट दिस इज वन वन टाइप ऑफ नेटवर्क जो कि क्लास सी नेटवर्क है, जिसकी नेटवर्क आईडी 220.3.6 है और इसके ऊपर 256 आईडीज हो सकती हैं। इसको कनेक्ट किया हुआ है बाय मींस ऑफ अ राउटर विद अनदर बिगर नेटवर्क जिसको स्विच्ड वैन का नाम दे दिया है बिकॉज whatever reason is for that, but this is one another network जिसके ऊपर there are again 256 addresses क्योंकि ये भी क्लास सी का एक नेटवर्क है। then it is further connected to another network जिसका जो कि क्लास बी का नेटवर्क है। इसकी नेटवर्क आईडी 134.18 है। इस पे 2 power 16 एड्रेसेस होंगे। there is a there is a point to point WAN connection, maybe a T1 लाइन और T3 लाइन जो कि दो राउटर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है और फिर एक और नेटवर्क जो कि क्लास ए नेटवर्क है 124 ब्लॉक आईडी के साथ। इस पे 2 power 24 एड्रेसेस होंगे और इसको कनेक्ट किया होता है। इस तरीके से एक सैंपल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बनाया जा सकता है और ये इसी तरीके से नेटवर्क जो है वो कनेक्ट होते चले जाते हैं और आपका एक ग्लोबल इंटरनेट की जो फॉर्म है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे जो एक और चीज बीच में आती है वो है प्राइवेट नेटवर्क्स की या वीपीएन्स की, या एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कि किस तरीके से आप प्राइवेट आईपीज को पब्लिक आईपीज के ऊपर मैप करते हैं। सो तो इस बाद में कर लेंगे हम, ऑलरेडी मैंने आपसे पूछ लिया। तो कम ऑन टू द प्राइवेट नेटवर्क्स, दिस इज चैप्टर 26 ऑफ योर बुक। बेसिकली जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं they are designed to be used only within an organization and they allows access to shared resources and provides privacy. Sometimes you do not want to go public, go on internet। उस मकसद के लिए प्राइवेट नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं और इसमें इनफैक्ट एक टाइप है इंट्रानेट की। इंटरनेट में एक रिमेन विद इन अ नेटवर्क और ना किसी को बाहर से एक्सेस है, ना ही कोई आपको एक्सेस है, अंदर वालों को बाहर की एक्सेस है, ना बाहर वालों को अंदर की एक्सेस है। जिसको हम इंटरनेट एक कॉमन नाम यूज करते हैं। इट्स अ प्राइवेट नेटवर्क व्हिच यूजेस टीसीपी आईपी सूट। Access to network is limited to only users inside the organizations and they can use applications like जो भी global network की applications है वो use कर सकते हो। they do not go public, वो अपनी organization के अंदर ही रहते हैं, ना बाहर वाले अंदर आ सकते हैं ना अंदर वाले बाहर जाते हैं। तो इसको हम इंट्रानेट कहते हैं। whereas another type of net is the extranet। extranet में ये है कि आप इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि मे बी कुछ रिसोर्सेज जो आपकी नेटवर्क की हैं वो बाहर वाले भी एक्सेस कर सकते हैं अगर उनको आप कोई पासवर्ड और आईडी दे दे। लाइक आपने देखा होगा कि होंडा, आपने उनके पार्ट्स को एक्सेस करना हो तो आपको एक नेटवर्क आईडी, उनका नेटवर्क है उनके अपने स्पेयर सर्विसेज का जो कि उनको अपनी एक्सेस है, लेकिन बाहर वाले एक्सेस कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो अगर ऑथेंटिक यूजर्स हो और उनको कोई नेटवर्क आईडी और पासवर्ड दे दिया जाए। या यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को बाहर से भी एक्सेस दे देती है कि जी आपने अपने एड्रेस को अपने रिजल्ट्स को चेक करना है तो आपसे हमारे नेटवर्क पे आके लॉगिन करके और एड्रेस को अपने रिजल्ट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। या कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज लॉगिन कर सकते हैं, कोर्सेज रजिस्टर करा सकते हैं, रिजल्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मे भी बहुत सारी चीजें जिनको वो एक्सेस नहीं देती हैं आपको और वहाँ पे, तो इसको हम एक्स्ट्रा नेट का नाम देते हैं कि सच एन एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ अ एक्स्ट्रा नेट जिसमें बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। सो जनरली जो एड्रेसिंग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में या इस तरह के नेटवर्क्स में है इरफान, उनका नाम है प्राइवेट एड्रेसेस। ठीक है, सो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक तरीका तो ये है कि आप क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर है, प्राइवेट नेटवर्क का मतलब तो ये है कि आपने ग्लोबल नहीं होना या ग्लोबल नेटवर्क्स पे नहीं जाना, तो आप स्टिल परचेज वही करें एड्रेसेस जो कि ग्लोबल आईपी के हैं और उनको लोकली यूज करें। इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं हो रहे लेकिन यूज कर रहे हैं, तो जाया करेंगे आप। एक काम तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये सोचा जा सकता है कि मे बी आपको कहीं फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट हो, एक्सटेंशन करना चाहते हो अपने नेटवर्क की, आप प्राइवेट नेटवर्क को ग्लोबल या लोकल नेटवर्क में लाना चाहते हो, तो आप अगर आईपीज आपके ऑलरेडी ऐसे हैं तो आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। So, but still address space is wasted till the time you're not on the global internet. और second ये है कि you can use any set of addresses without registering with the internet authorities। आप एड्रेस रजिस्टर ना कराएं, यूज करना शुरू कर दें, इंटरनेट पे तो जा ही नहीं रहे आप,
जब भी इंटरनेट पे जाएंगे तो आपकी एक्सेस जो है वो क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस जो है वो रजिस्टर नहीं होगा, लेकिन लोकल रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं। तो लेकिन ये इनफैक्ट इसको हम लीगली आप कहें मॉरली ठीक समझा नहीं जाता कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक इधर आप करना चाहें लोकल अपनी लैब के अंदर, आप 10 वाले ब्लॉक की जगह 11 वाला ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, जो कि आईपी पब्लिक है, आप लोकल नेटवर्क भी है, आपने इंटरनेट को अगर नहीं करना, लेकिन जब भी इंटरनेट जाने की कोशिश करेंगे वो आपको एक्सेस आपकी ब्लॉक कर देगा। तो ये मॉरली ठीक नहीं है कि बंदा ये एक्सेस करना चाहे और उसको पता चले जी कि मुझे आईपी तो इन्होंने दिया हुआ है पब्लिक, लेकिन पब्लिक में हो नहीं सकता, इन्होंने इलीगली यूज कर रहे हैं। तो वो एक मॉरल फिगर उसमें या मॉरल पॉइंट है जिसको किल करने के लिए देयर आर 3 सेट्स ऑफ एड्रेसेस जो हमने थोड़ी देर पहले देखे। ब्लॉक 10 वाला है और 172.16 वाला से लेके 172.31 तक का जो ब्लॉक है, और फिर 192.168.0 से लेके 192.168.255 तक के जो ब्लॉक्स हैं वो प्राइवेट ब्लॉक्स हैं, जिनको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं और उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। Okay, so that is as far as the private networks are concerned. But generally, there is another category where you would like to go public while remaining private. So for that purpose, there is a technology which is the VPNs, yeah, virtual private networks, or basically it can be achieved by 3 strategies. VPNs. एक तो ये कि आप प्राइवेट नेटवर्क्स ही बनाएं, यानी जब आपने कम्युनिकेट करना है तो आप प्योरली प्राइवेट नेटवर्क बना लें। उसके लिए आपकी कंपनी है, उसके एक ऑफिस इस्लामाबाद में है, एक ऑफिस कराची में है, और आप पूरी की पूरी लाइंस जो है वो इस्लामाबाद से कराची तक अपनी प्योरली बिछाएं आपस में कम्युनिकेशन के लिए, और इंटरनेट की एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को यूज ना करें, जो लोकल आईएसपीज उनको यूज ना करें। तो ये प्योरली प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, लाइक इस तरह का एक सेटअप है, एक साइट ए एक साइट बी है, आपने प्योरली अपने लिए उस नेटवर्क को स्टैब्लिश कर लिया। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज टू कॉस्टली फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये प्योरली फिर आपका सिस्टम है, इस पे कोई और ना आएगा, ना आप किसी को आने देंगे, ना आप जाएंगे। लेकिन ये कि यू आर नॉट यूजिंग दी रिसोर्सेज, जो कि से कराची से इस्लामाबाद के लिए अगर आपने कनेक्ट करना हो 2 साइट्स को, तो इंटरनेट के थ्रू भी अवेलेबल है, आप अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट एज वेल, बट यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर मेकिंग योर ओन कनेक्शंस, प्योरली योर ओन कनेक्शंस। सो दिस इज अ प्राइवेट नेटवर्क। Whereas another could be possibility could be कि आपने प्राइवेट सेटअप भी बिछाया हुआ है लेकिन इंटरनेट को भी यूज करें आप, इसको हम हाइब्रिड नेटवर्क कहते हैं। यू आर मेकिंग यूज ऑफ द इंटरनेट बाय अ सेपरेट राउटर्स, सेपरेट सेट ऑफ राउटर्स, और जो आपकी अपनी प्राइवेट कम्युनिकेशन है वो अपनी आप अलग से लीज लाइन के थ्रू कर रहे हैं, आपका अपना सेटअप है। सो इसमें आपके पास अगेन सिक्योरिटी के इश्यूज ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर सकती है वंस यू गो ऑन टू द इंटरनेट विच इज़ प्राइवेट, और वो आप अवॉइड करना चाहते हैं। इसको हाइब्रिड नेटवर्क कहा जाता है। थर्ड थिंग इज पॉसिबल कि इफ यू स्टे ऑन द इंटरनेट, अपने लोकल जो भी आपके ऑफिसेज हैं उनको आप थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं बाय डूइंग सम टाइप ऑफ इंक्रिप्शन at the local router by running a software of VPN, which can encrypt your traffic and it can decrypt your traffic at the receiver end. So for that, this is called the virtual private network, which basically uses the facilities given on the internet. So जो भी इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, दुनिया में, उसको यूज करें आप, कराची से लेके आप कैलिफोर्निया तक या इस्लामाबाद से लेके आप वाशिंगटन तक अपने 2 ऑफिस को कनेक्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ VPNs, जो कि आपकी ट्रैफिक को प्राइवेट रखेगा बाय डूइंग द नेसेसरी इंक्रिप्शन। ठीक है, तो उसके लिए 2 टेक्निक्स यूज होती हैं। वन इज कॉल्ड द आईपी सिक्योरिटी, चैप्टर 28 इसका है जिसको हम देखेंगे आगे जाके, एंड सेकंड इज द टनलिंग। जो टनलिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। आई ट्राई टू अरेंज अ लेक्चर ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी एज वेल। आप में से किस ने नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ आपने? तो आईपी सिक्योरिटी आपने वहाँ कवर की थी? आईपी सिक्योरिटी कवर की थी, क्योंकि दिस इज प्योरली रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी एस्पेक्ट, जिसमें आप ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं बाय डूइंग द नेसेसरी इंक्रिप्शन विद दिस प्रोटोकॉल। सो दिस इज इन डिटेल इट इज कवर्ड, या इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी कोर्स में कवर होती हैं। आई विल ट्राई कि यहाँ भी हम एक ब्रीफ सा जो एक इंट्रोडक्शन टाइप लेक्चर जो है नेटवर्क सिक्योरिटी का जो है वो रख सकें, जिसमें थोड़ा सा हम इसको देखें, ताकि अगले सेमेस्टर में जो एक कोर्स ऑफर हो तो आप थोड़ा सा उसमें ऑलरेडी इन हो। तो अगर हम जाएं टनलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो टनलिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि जो भी आपका पैकेट है और आपने उसको अपने लोकल नेटवर्क से बाहर फेंकना है इंटरनेट के ऊपर, तो उसको आप एक और पैकेट में इनक्रिप्ट करके डाल देंगे, और वो इनर पैकेट जो आपका है, जो आपकी लोकल सिस्टम का है, दिस इज योर
योर लोकल क्रिएटेड नेटवर्क या लोकल फाइल जो कि इनक्रिप्ट होके विद अनदर आईपी हेडर एक पैकेट बन जाएगा और ये पैकेट ट्रैवल करेगा आपके राउटर से। दिस इज द इनक्रिप्टेड पैकेट जो कि ट्रैवल करेगा फ्रॉम योर साइट टू द नेक्स्ट साइट वेयर यू वांट टू सेंड इट, और वहाँ जो लोकल राउटर है वो उसको दोबारा डिक्रिप्ट करके अपने ओल्ड पैटर्न में से आपके स्टेशन 100 है, ये एक पैकेट या एक फाइल भेजना चाह रहा है स्टेशन 200 को, से ये कराची की आपकी साइट है और ये से आपकी कैलिफोर्निया की साइट है। सो देयर इज अ लोकल राउटर एट कराची, देयर इज अ लोकल राउटर एट कैलिफोर्निया, सो बोथ ऑफ देम आर इन कांटेक्ट थ्रू द इंटरनेट, और यहाँ पे जो लोकल सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो इस पैकेट को एनक्रिप्ट करके ट्रांसफर करेगा यहाँ से, और इट विल राउट इट फ्रॉम R1 as the source and R2 as the destination। अकॉर्डिंगली ये पैकेट इंटरनेट पे जिस भी रूट से ट्रैवल करे, चाहे इंडिया से होता हुआ जाए, इसराइल से होता हुआ जाए, बट विल बी इनक्रिप्टेड, इट विल गो एंड रीच टू द कैलिफोर्निया जहाँ पे जो लोकल राउटर है वो उसको दोबारा डिक्रिप्ट करेगा, और ये आपके एक्चुअल पैकेट जो है फिर आपके सिस्टम पे वो फाइल जो है वो ट्रैवल करके पहुंच जाएगी। 2 हेडर्स लगे हुए पैकेट के अंदर, एक और पैकेट होता है। जो यहाँ पे से इधर जो आईपी लगे होंगे वो लगे होंगे जी के मैं भेज रहा हूँ 200 के लिए और 100 से आ रहा है, लेकिन ये जो पैकेट है ये जब इस राउटर R1 पे पहुंचेगा तो इट नोज कि जो 200 है ये मेरे राउटर R2 के ऊपर है, तो ये जब इसको दोबारा एक पैकेट में बंद करेगा तो ये अपने R1 का एड्रेस लगाएगा सोर्स और R2 का एड्रेस लगाएगा डेस्टिनेशन। नाउ दिस पैकेट वो ट्रैवल, ये दिस ऑल एनक्रिप्टेड। जब ये इधर पहुंचेगा तो ये राउटर जब इसको इंटरसेप्ट करेगा तो ये देखेगा जी कि ये मेरे लिए आया हुआ है और R1 से आया हुआ है, एंड इट इज अ VPN पैकेट जिसके कंसर्न फ्लैग्स जो वो ऑन है, तो इट मींस कि आई हैव टू डिक्रिप्ट, आई हैव टू रिमूव द हेडर एंड आई हैव टू गेट द एक्चुअल पैकेट आउट, और उसको डिक्रिप्ट मैंने करना है। टनलिंग का कॉन्सेप्ट, टनल इसको इस तरह कह लें आपके एक सॉर्ट ऑफ ये एक रूट फॉलो कर रहा है कि इसने एक फिक्स रूट को फॉलो करना है बाय द TCP लेयर, तो वो इसके लिए एक टनल है जिसमें इसने एक एंड से एंटर होना है, दूसरे एंड पे इसने उसी जगह पे जाना है क्योंकि इस R2 के अलावा कहीं और ये नहीं जानेगा, इसी के लिए ये डेस्टाइंड है। तो सॉर्ट ऑफ एक टनल बन रही है, जितने पैकेट्स हैं वो इसी, अब ये एक पैकेट तो नहीं होगा, इसके पीछे और भी सीरीज ऑफ पैकेट्स होंगे, दे विल फॉलो द सेम पाथ इफ दे आर फॉलोइंग द TCP लेयर या TCP रूट, और अकॉर्डिंगली ये एक के पीछे दूसरे के पीछे तीसरा, और ये एक टनल के तौर पे समझे। टनल क्या होती है, इसका एक एंड होता है और एक एग्जिट होता है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ टनलिंग कॉन्सेप्ट। ये टनल के तौर पे इधर R2 पे पहुंच जाएगा, R2 उसको दोबारा डिक्रिप्ट करेगा और उसके जो लोकल नेटवर्क्स हैं वहां पे वो, या लोकल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है वहां पे वो कंसर्न स्टेशन पे पैकेट डिलीवर हो जाएगा। दिस इज दी VPN, और इससे जो एफिलिएटेड कॉन्सेप्ट है वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। नेट का कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज जनरली यूज क्योंकि आपकी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में प्राइवेट एड्रेसेस यूज हो रहे होते हैं। सो प्राइवेट एड्रेसेस जिस तरह 172 डॉट मैंने कहा कि जो रेंज है वो 172.16.0.0 से लेके .31.0.0 ये अगला ब्लॉक आखिरी ब्लॉक है। तो अगर ये इस ब्लॉक को देखा जाए तो ये 172.16.255.255 तक है। तो इनमें से कोई भी आईपी एड्रेस जो है वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन अपने लोकल सिस्टम्स को दे सकती है, और अगर वो इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक को राउट करते हैं देयर इज अ लोकल नेटवर्क नेट राउटर जो कि इस प्राइवेट आईपी को मैप करता है एक पब्लिक आईपी पे, जिसको दुनिया जानती है कि इंटरनेट को ये पता है कि जी पैकेट इज कमिंग फ्रॉम 200.24.5.8, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम 172.18.3.30, क्योंकि 172.18.3.30 जो है ये एड्रेस हो सकता है दुनिया में लाखों लोगों के पास, उनके प्राइवेट नेटवर्क्स पे ये सेम एड्रेस हो सकता है, लेकिन ये एड्रेस जो है वो आइसोलेटेड एक ही होगा जो कि इस राउटर के पास है, किसी और के पास नहीं होगा। So ये जो मैपिंग है from the private IP to public IP, and once the packet is received back from that source जहाँ से ये राउट किया गया है, तो उस मौके पे उसने वापस आना है, तो वो दोबारा इस एड्रेस के ऊपर आएगा, और लोकल एक ट्रांसलेशनल टेबल मौजूद है नेट राउटर का जिसको पता है कि जी ये जो ट्रैफिक जनरेट हुई थी ये इस एड्रेस से जनरेट हुई थी, तो मैंने इस पैकेट को जो कि अब मुझे आ रहा है डेस्टिनेशन से वो इधर ट्रैवल करना है। दिस कॉन्सेप्ट इज इनफैक्ट is not possible without address translation। ये सोर्स है अगर और इसको मालूम है
बाय वर्चू ऑफ इट्स लोकल डीएनएस सर्वर के मैंने गूगल को एड्रेस करना है, गूगल का एड्रेस 20.1.2.3 है फॉर एग्जांपल। जब ये पैकेट बनाएगा तो सोर्स में अपना एड्रेस डालेगा, डेस्टिनेशन में ये एड्रेस डालेगा, और जब ये नेट राउटर में पहुंचेगा और इसने इनफैक्ट आगे जाना है इंटरनेट के ऊपर, तो नेट राउटर जो है इस 172.18.3.1 को रिप्लेस कर देगा विद इट्स आउटगोइंग आईपी जो कि 200.24.5.8 है, और इस एड्रेस को लगा रहने देगा कि जी ये इस तक इसने जाना है। वहां जब पहुंच जाएगा तो गूगल के राउटर के ऊपर ये होगा एज दी सोर्स एड्रेस और ये उसका अपना एड्रेस होगा। वो रिप्लाई बैक इस एड्रेस पे करेगा। जब वो रिप्लाई बैक करेगा तो वो इस राउटर तक पहुंचेगा। राउटर के पास अपना एक टेबल मेंटेन है जिसमें उसने इसके अगेंस्ट इस एड्रेस को लिखा हुआ है कि जी इसने बेसिकली ट्रैफिक जनरेट की थी, अकॉर्डिंगली वो इसको अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा। और इस तरीके में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रैफिक हमेशा जनरेट हो फ्रॉम दी सोर्स, यानी फ्रॉम दी प्राइवेट एड्रेस। तो जनरली जो हमारे जितने भी नेट की ट्रैफिक है वो लाइक हमारा, अगर हमने पीटीसीएल से कनेक्ट करना है, हमारी जितनी भी पीटीसीएल या जो भी लोकल आईएसपीज होती हैं वो हमें जनरली एक प्राइवेट आईपी देती हैं, और उस प्राइवेट आईपी के अगेंस्ट वो अपने पास उनके लोकल राउटर के ऊपर एक टेबल मेंटेन हो रहा होता है कि जी ये फ्ला आईपी जो है इसको मैंने इस एड्रेस पे मैप करना है। आईएसपीज के पास हर एक अगेंस्ट एक सिंगल आईपी नहीं होता, बल्कि वो एक पूल ऑफ आईपीज यूज कर रहे होते हैं जिसको वो अपने यूजर्स को दे रहे होते हैं, और बाय मेंटेनिंग अ टेबल समवेयर समथिंग लाइक दिस, इस तरह का एक टेबल मेंटेन कर रहे होते हैं। और ये इजीली पॉसिबल है क्योंकि कम्युनिकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो हमने स्टार्ट करनी है। अगर मैं इंटरनेट पे कनेक्ट हो रहा हूँ बीइंग अ पीटीसीएल यूजर, तो मैं ट्रैफिक जनरेट करूंगा फ्रॉम दिस एड्रेस। जब मैं ट्रैफिक जनरेट करूंगा तो पीटीसीएल का जो नेट राउटर है वो मेरे अगेंस्ट इस टेबल को मेंटेन करना शुरू कर देगा, और मेरे इस तरह के जितने यूजर्स हैं वो उनके प्राइवेट आईपीज को कोई एक अवेलेबल आईपी एड्रेस दे देगा बेस्ड ऑन दी अवेलेबिलिटी, राइट। सो इस तरीके से ये सिस्टम जो है वो चल पड़ता है। So, but for this system to be possible, the communication has to start from the private address, ठीक है। और ये बड़ा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम ठीक भी है, क्योंकि अगर कोई आउटर सोर्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई अनऑथेंटिक यूजर ट्रैफिक जनरेट करता है से आपके लिए, तो पहली बात तो ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन का राउटर है वो जब एक ऐसा पैकेट ट्रेस करेगा जिसके ऊपर उस जो आईपी लगा हुआ है वो उसके टेबल में मेंटेन ही नहीं है, तो वो आगे उसको कहीं भी नहीं भेजेगा, रोक देगा वहीं पे। तो अल्टीमेटली ट्रैफिक जो है वो अननेसेसरी सिस्टम्स पे नहीं जाएगी, या ट्रोजन्स या जो आपके वायरसेस हैं वो नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल नहीं करते। फिर वो इस केस में डेफिनेटली जो ऐसे रिसोर्सफुल हैकर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जो ये आपके पास जो प्राइवेट पोर्ट्स हैं या जो आपके एक्सटर्नल पोर्ट्स हैं, आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, वो इन पोर्ट्स को चेंज करते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबलिंग बेसिकली वो इन पोर्ट्स को जो कुछ खास सिस्टम्स कनेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक यू आर कम्युनिकेटिंग ऑन पोर्ट 80 विद द एचटीटीपी एप्लीकेशंस, या जो आप पोर्ट 23 पे कम्युनिकेट करें विद द एफटीपी एप्लीकेशन, वो इन स्पेसिफिक पोर्ट्स को एक्टिव करवा देते हैं। तो उस सूरत में इस पर्टिकुलर राउटिंग टेबल के अंदर दे ट्राई टू पीक इन एंड दे ट्राई टू गेट देयर ट्रैफिक इंसर्टेड इन द सिस्टम। सो उस केस के अंदर ट्रैफिक जा सकती है, बट जनरली जो एक लेस लिटरेट हैकर है या लेस लिटरेट अनऑथेंटिक यूजर है वो इस नेटवर्क में नहीं इंसर्ट हो सकता। बट अगेन जो एडवांस यूजर्स हैं दे कैन डू वेरियस अदर थिंग्स टू गेट इनटू इट। बट ये कि एक जनरल ट्रैफिक में ये आपको अंदर नहीं आने देगा अगर ये राउटर के टेबल के अंदर आपका एड्रेस नहीं है तो। बट कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि आपका प्राइवेट आईपी है और इस टेबल में उसके अगेंस्ट एक पब्लिक आईपी आपको असाइन हो गया। लेकिन ये उस सूरत में तो गुड है कि जब आपके पास एक के अगेंस्ट एक यूजर है, लेकिन अगर मल्टीपल यूजर्स हो तो फिर ये स्ट्रेटेजी कायम नहीं करती। उस सूरत में आपको मल्टीपल आईपी एड्रेसेस या पूल ऑफ आईपी एड्रेसेस यूज करने पड़ते हैं। लाइक ये एक प्राइवेट आईपी है जो कि गूगल से ही कांटेक्ट करना चाह रहा है, राइट। एक और आईपी है वो भी गूगल कनेक्ट करता है, तो आईपी आउटगोइंग एड्रेस तो दोनों सेम यूज करेंगे। तीन है तो तीसरा भी वही यूज करेगा। जबकि इसके अगेंस्ट जो टेबल मेंटेन हो रहा है वो टेबल में इस एड्रेस के अगेंस्ट एक ही आईपी है अगर, तो जो ट्रैफिक वापस आएगी वो तो इसी आईपी के लिए आएगी। जबकि इस आईपी के अगेंस्ट आपके पास अगर 4 यूजर्स हैं तो आप उसको फिर करेक्ट यूजर पे डायरेक्ट नहीं कर सकते।
उस मकसद के लिए अगर पूल ऑफ आईपी एड्रेस है तो हर एक को आप अलग अलग आईपी आउटगोइंग आईपी देंगे। अकॉर्डिंगली जब ट्रैफिक वापस आएगी तो वो इसके अगेंस्ट ये एड्रेस होगा, इसके अगेंस्ट ये होगा, इसके अगेंस्ट ये होगा, चौथे के अगेंस्ट ये होगा। अकॉर्डिंगली वो ठीक तरीके पे डायरेक्ट हो जाएगी। अगेन दिस विल अगेन फेल कि अगर आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि अभी चूंकि हमारे पास एक ही टाइम पे 4 डिफरेंट यूजर्स ने एक ही एप्लीकेशन को कनेक्ट किया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास इसमें भी ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, लाइक नो मोर देन 4 कनेक्शंस आर पॉसिबल टू द सेम डेस्टिनेशन एज शोन इन द प्रीवियस स्लाइड। नो प्राइवेट नेटवर्क होस्ट कैन एक्सेस 2 एक्सटर्नल सर्वर प्रोग्राम्स HTTP और Telnet at the same time, बिकॉज आप एक वक्त में एक एप्लीकेशन तो नहीं खोलते, आप 2 3 4 भी खोल सकते हैं। तो उस केस में फिर क्या करेंगे, आपके पास आईपी तो एक ही है, तो अब इससे जब रिटर्न बैक जवाब आएगा तो वो किधर जाएगा, और इससे जब आएगा तो वो किधर जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह से हाउ टू डिस्टिंग्विश द पैकेट इज रिसीव्ड फ्रॉम नो टू प्राइवेट नेटवर्क होस्ट कैन एक्सेस सेम एक्सटर्नल सर्वर प्रोग्राम एट द सेम टाइम। लाइक ये एक सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, दोनों अलग अलग सिस्टम है और एक ही को एक्सेस कर रहे हैं, दोनों के आईपी एड्रेसेस सेम है, राइट। और इस केस में अगर आपने आईपी एड्रेस भी सेम दिया हुआ है तो उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसको ऑल्दो आपने पूल से तो एड्रेस कर लिया, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप एप्लीकेशन लेवल के ऊपर भी एक बाइफिकेशन कर दें, यानी इसके लिए अलग पोर्ट असाइन कर दें, इसके लिए अलग पोर्ट असाइन कर दें। सो अकॉर्डिंगली जो आइडियल सिस्टम बनता है इन सब केसेस को हैंडल करने के लिए, वो इस तरह का बनता है कि ना सिर्फ प्राइवेट एड्रेस उसके अंदर हो अगेंस्ट दी एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, बट एज वेल एज उसकी लोकल पोर्ट और जिस पोर्ट से ये कम्युनिकेशन हो रही है और जिस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही है, टीसीपी या यूडीपी, वो भी मेंशन हो। यानी ये 5 चीजें अगर आपके पास मेंटेन हो रही हैं इस नेट राउटर के ऊपर, तो उस केस के अंदर you can easily perform this public to private mapping and the transformation is easier without any doubt. पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन इसको आप कहेंगे तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ही, लेकिन आपने वहां पे एक पोर्ट्स का एक कॉलम भी मेंटेन किया हुआ है कि ये जो आईपी है ये इस पोर्ट के ऊपर कम्युनिकेट कर, अब से इसने HTTP से इसके साथ कम्युनिकेट किया और इसी ने अगर एक और एप्लीकेशन खोली FTP और वो उस पर चला जाता है 1402 के ऊपर, उसको जो भी फ्री पोर्ट है वो मिल जाएगी। तो जब ट्रांसफर बैक चीजें आएंगी तो वहां पे ये पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि इस सिस्टम ने, इसका मतलब है कि 2 डिफरेंट प्रोसेसेस खोले हुए, और जब इन्फॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम HTTP तो वो इसके ऊपर जानी है, और फ्रॉम FTP अगर आनी है D3 से तो वो इसके ऊपर जानी है। अकॉर्डिंगली जो पॉसिबिलिटीज हैं वो करेक्ट रहती हैं, गलती यहाँ पे नहीं होगी, पैकेट्स ड्रॉप नहीं होंगे। इसके इस तरह से द करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर रीच टू द करेक्ट सोर्स एड्रेसेस। पोर्ट टू पोर्ट ऐसी, बिल्कुल ऐसी पोर्ट बाउंड हो जाएगी आपकी, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप प्राइवेट जो आईपीज हैं उनकी प्राइवेट पोर्ट को जो उनकी एक्चुअल पोर्ट्स होनी चाहिए उनके साथ आप बाइंडिंग कर देंगे, और ये पूरा एक टेबल जो है मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीपल आईपीज मल्टीपल प्रोसेसेस खोल के उनको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अब आप अगर से PTCL के यूजर हैं और ये आईपी आपके पास उसने आपको दिया, एक प्राइवेट आईपी आपके पास कॉन्फ़िगर कर दिया, अब आप अपने पास बैठ के आपने एक गूगल का सर्वर भी खोल लिया, आपने इसके बाद अपने एक FTP की एप्लीकेशन या अपने रिमोट लॉगिन के सूरत में एक एप्लीकेशन खोली हुई है, कुछ फाइल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं आप, राइट, वो भी आपने खोल लिया। इसके अलावा आपने कोई और किसी और इंटरनेट साइट के ऊपर भी HTTP की एप्लीकेशन खोली हुई है, तो ये सारी की सारी डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर कनेक्ट होंगी, तो वो पोर्ट्स यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, और उन पोर्ट्स के अगेंस्ट जो उनकी जो ग्लोबल पोर्ट्स हैं जिन पे वो एड्रेसेस लाए करते हैं या वो एप्लीकेशन रन कर रही है, वो आपके नेट के ऊपर मेंटेन हो जाएगी, और वो आपको उसके अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस भी दे देगा। अब आपकी ये आपका एक्सटर्नल आईपी है 25.8.3.2, इसके अगेंस्ट पोर्ट 80 पे आपकी एक एप्लीकेशन खुली होगी, पोर्ट 23 पे सेकंड एप्लीकेशन खुली होगी, मे बी पोर्ट नंबर 75 पे एक तीसरी एप्लीकेशन खुली होगी। जो इन्फॉर्मेशन वापस आएगी उन ऑर्गेनाइजेशंस या उन पर्टिकुलर सेटअप से, गूगल पे भी इसके ऊपर आपको रिप्लाई बैक करेगा, FTP यहाँ पे रिप्लाई बैक करेगा, और मे बी अनदर एप्लीकेशन विल रिप्लाई बैक हियर, तो उनके अगेंस्ट आईपी तो सेम ही है, एक्सटर्नल आईपी तो सेम है, लेकिन ये पोर्ट डिस्टिंग्विश कर रही होंगी कि आगे किस करेक्ट प्रोसीजर के ऊपर जानी है ये, यानी ये तो ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा जी कि इस आईपी के पे भेजना है, लेकिन इस आईपी के किस
प्रोसेस पे भेजना है, वो फिर ये पोर्ट बताएगी कि ये पोर्ट 80 इज मैप्ड विद 14 पोर्ट 1400, 23 इज मैप्ड विद 141402। अकॉर्डिंगली जो चार प्रोसेस यहाँ खुले हुए हैं एक सिस्टम के ऊपर, 1 2 3 4 खुले हुए हैं, यहाँ से जब इंफॉर्मेशन वापस आएगी तो वो इस सिस्टम पे आने के बाद करेक्ट सिस्टम या करेक्ट प्रोसेस के ऊपर भी ट्रैवल करनी है, तो वो फिर पोर्ट बताएगी कि ये इस पे जाना है या इस पे जाना है या इस पे जाना है, क्योंकि यहाँ पर एक टेबल पे ये मेंशन्ड है कि ये पोर्ट 80 से आ रहा है और पोर्ट 80 का मतलब ये है कि इस पोर्ट पे डिलीवर होना है। ऐसे ही है 1024 तक जो पोर्ट्स हैं वो आपने प्रोसेसेस को असाइन की हुई ऑलरेडी क्लासिफाइड है वो, उसके ऊपर की जितनी पोर्ट्स हैं क्योंकि 2 पावर 16 तक आप एड्रेसेस ले सकते हैं ना, तो उसके ऊपर के जितने एड्रेसेस हैं वो बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी आपका लोकल यूजर या लोकल सिस्टम जो है वो कोई भी पोर्ट ले सकता है और वो उसको असाइन कर सकता है। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब ये होता है कि स्टैटिक में एक यूजर या एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो खुद चीजें इंसर्ट करता है कि जी ये पोर्ट मैं इसको दूंगा, ये आईपी मैं इसको दूंगा, ठीक है, और वो फिक्स कर देता है, टेबल फिक्स हो जाता है। वेयर एज डायनेमिक में फर्क ये होता है कि आप ऑटोमेटिकली आपका एक सर्वर जो है वो डिसाइड कर रहा है या नेट सर्वर डिसाइड कर रहा है कि जी मेरे पास ये पूल एड्रेसेस हैं, मैंने 5 मिनट के लिए से उसके बाद एक टाइमिंग है कि जी 5 मिनट के बाद मैंने सारी पोर्ट्स को फ्री कर देना है, सारे आईपीज को फ्री कर देना है और मैंने नया आईपी देना है, नया पोर्ट नंबर देनी है, बिकॉज हो सकता है कि यूजर यूज ही ना कर रहा हो सिस्टम को या मेरे जो यूजर्स हैं वो डाई हो चुके हो। तो वो डायनामिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऑटोमेटिकली कुछ अर्से बाद एक्सपायर करते हैं अपने गिवन रिसोर्सेज को और रिसोर्सेज को रीअसाइन करते हैं बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो वो डायनामिक है। जिस तरह से DHCP और ब्रूट सर्वर का कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से इस नेट के अंदर भी डायनामिक नेट और स्टैटिक नेट दो डिफरेंट है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स ऑलवेज डायनामिक विच इज नाउ वर्किंग। स्टैटिक वाले कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गए क्योंकि अभी किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास ना टाइम नहीं है कि वो जाके एक एक राउटर के कॉन्फ़िगरेशन टेबल्स को खुद मेंटेन करे, और या वो उसमें गलतियां इतनी कर सकता है कि आप उसको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल है, तो इसलिए डायनामिकली ही चीजें असाइन होती हैं, तो एवरीथिंग इज डायनामिक। और आपकी बात ठीक है कि पोर्ट 1024 तक की जो पोर्ट्स हैं वो सिस्टम्स को स्पेसिफिक हुई हुई है, वो सिस्टम नहीं ले सकते। अगर आपने लेक्चर मेरा सुना हो जो हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग पे दिया था, वहां पे हमने पोर्ट्स की स्पेशल बात भी की थी कि किस हद तक पोर्ट्स जो है वो प्राइवेट है और कहाँ पे पोर्ट्स जो है वो स्पेसिफिक टू द सिस्टम्स है। और इसी तरह से हमने जब प्रोग्रामिंग के अंदर अपने क्लाइंट और सर्वर के अंदर जो पोर्ट्स असाइन की थी वो हमने फिर उसी के मुताबिक असाइन की थी कि कौन सी पोर्ट हम ले सकते हैं या किस कोड के तहत हम जो फ्री अवेलेबल पोर्ट होती है वो आपका सिस्टम उठा लेता है, ठीक है। सो इस तरीके से जनरली इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जितनी ISPs होती हैं उनके पास एड्रेसेस जो हैं वो कम होते हैं, ठीक है, दे मे बी 1000 एड्रेसेस विद PTCL बट इट विल गिव दिस दोज एड्रेसेस टू मे बी 100,000 यूजर्स क्योंकि हर वक्त हर बंदा कनेक्ट नहीं है नेट के साथ, तो आप प्राइवेट IPs आप ज्यादा दे देते हैं और लोकल IPs कम होती है और जो कनेक्ट होगा उसमें आप अकॉर्डिंगली उसको आगे कनेक्ट कर देंगे। समटाइम्स आपको मिलेगा जी कि आप आगे कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे क्योंकि सारे जो IP एड्रेसेस हैं वो लोगों ने ऑलरेडी असाइन किए हुए होंगे। समटाइम्स देयर इज अ कंजेशन, यू ट्राई टू कनेक्ट बट यू आर नॉट कनेक्टेड बिकॉज योर IP एड्रेस इज या योर स्पेस इज नॉट अवेलेबल विद द ISP। नेट के सारे IPs जो है वो यूज में है और आप नए एक यूजर हैं बीच में और आपको वो बात को रिजेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जनरली स्पीकिंग जब भी हम म्यूचुअल ग्रुप में असाइनमेंट्स करते हैं तो इट्स ऑलवेज अ केस, एक खास रेशो के अंदर अगर ये 1000 IP एड्रेसेस हैं तो दे आर सफिशिएंट टू सर्विस 100,000 कस्टमर्स। ये सारे के सारे इनमें से कुछ ना कुछ हर वक्त फ्री होंगे, तो डायनामिक असाइनमेंट में ये जो नेट राउटर है वो ये असाइनमेंट कर सकता है और लोगों को इंटरनेट पे कनेक्ट करता रहेगा, अकॉर्डिंगली चीजें जो है वो चलेगी। तो इस तरीके से जितनी भी ISPs हैं वो इसके तहत अब ये जो नेट का कॉन्सेप्ट है, दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू मेक और यूज लेसर IPs फॉर लार्जर यूजर्स। सो इस तरीके से हम बिकॉज ऑफ दिस नेट कॉन्सेप्ट स्टिल वी आर स्टिल यूजिंग द IPv4 बिकॉज ऑल्दो एड्रेसेस कम है लेकिन
ये एक इफेक्टिव वे है यूज करने का, जिसके तहत आप जो प्राइवेट वाला ब्लॉक है, और प्राइवेट वाला ब्लॉक जो है वो एक जगह नहीं बल्कि लाखों जगहों पे यूज हो रहा है, और इट मीन्स के उस उतने आईपी एड्रेस आपके पास एक्स्ट्रा हो गए, जो कि आप इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करके अपने सिस्टम में आईपीस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं मेरे ख्याल में। सिंगल सिंगल करना है। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया, सिंगल सिंगल करना है। अगर आप मुझसे सवाल ना करती, ग्रुप में कर लेती, तो मैं आपसे ना पूछता कि ठीक है ग्रुप में कर लेती। योर फॉल्ट। नहीं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि कभी क्लेरिफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एवरी ऑल द क्लेरिफिकेशंस आर हार्मफुल